बोलते बात की अलग बात है, अपन वाई थियरी में बिलीव करते हैं, निगेटिव मोटिवेशन, तू निकम्मा है, तू नकारा है, ठीक है, भाषा ही ऐसी है, क्या करूँ मैं उसको, ऐसे बनाया इनको। हाँ नहीं, इसका फ्रेंड था, इसका फ्रेंड था। The point is, वो मेरा स्टाइल है, that is a different story. But my point is, no one would pamper you in your workplace. So be ready for this, be ready for criticism. घर में होता है बेटा, रोटी खराब भी बन गई तो पापा बोलते हैं बहुत अच्छी बनाई है, ये घर में होता है, ये वर्क प्लेस पे नहीं होता है। तो अपने आप को इमेजिन करो वर्क प्लेस में, और वो हिसाब से अपना एप्टीट्यूड डेवलप करो, अपना एटीट्यूड डेवलप करो, विच विल लीड यू टू अ वंडरफुल करियर। Once again, I thank all the panelists for accepting our invite and remaining present here, and for a very, very thought-provoking panel discussion. I strongly believe that this will help all the delegates to great extent in their careers, and students will keep all these things in mind. I also take this opportunity to thank Dr. Hariom Punyani, whom I had outsourced this. I had 2 sessions on my plate. I normally do not try to eat more than I can chew. So yesterday's session I have taken, and this was outsourced to Dr. Hariom Punyani. He has very well organized this event. I thank him also. Thank you so much. God bless you. Thank you so much, sir. It is a blessing for me now to work under you as an Associate Dean of this university. For the formal vote of thanks, I would like to thank the Honorable Vice Chancellor of RTM Nagpur University for providing us with the facilities and the arrangements and giving us the permission to conduct this session under the Advantage Vidarbh event in this hall for all his support. The AID team for all the organizing things. Of course, the Dean Faculty of Commerce and Management, Dr. Sanjay Kaveshwar sir, and all the officials of RTM Nagpur University for supporting us. Kaveshwar sir especially for supporting me from point 0, scratch to this last point. Thank you, sir. All the panelists, Ranjit ji, Rohit ji, and Pradeep ji, for giving insightful discussion to the insightful points to us, and accepting our invitation and finding out time to come out and travel to this place today on a Saturday. Thank you so much, all the panelists, for your wisdom. I would like to thank all the teacher members and the principals sitting here, and without your support, this was not possible. You have taken real efforts to bring in your students to this room, and I believe you have done a wonderful job by bringing them here. The students who have participated, the delegates of this event, I'm greatly thankful, gratitude to you for coming here, and I believe that you are taking back a lot of things in your pocket today, and you will implement them at the earliest from your point of view. And I will be at a crime if I don't thank the volunteers, the student volunteers from my college who supported me really, really well since yesterday till date, and they were really on the toes. जैसे कि सर ने कहा 10 to 6 मत रखना, इन सभी बच्चों ने वही किया, 10 to 6 नहीं रखा। कल मैं एक सेशन में बैठा हुआ था और इन बच्चों ने मुझे सामने से कहा, सर हम जाके ये हॉल अरेंज कर देते हैं, सर हम ये कर देते हैं, and I did nothing. To be honest, I want a clap, at least round of applause for these wonderful students. All the people who were there behind the stage, all technicians, everyone, housekeeping, everyone who was there behind the stage as well for conducting this session. If I'm missing out anyone, I don't know, but apologies for that. But it was a wonderful experience looking to the response to this event. Thank you so much, everyone. Have a great day ahead. Please visit the exhibition of Vidarbh, Advantage Vidarbh after this session. Thank you so much, everyone.
one and all present here. Myself, Srushti Borkar, your host of today's panel discussion. I welcome you all to this panel discussion of education and skill development sector. A campus has many students which are good at studies. Of course, you all are good at studies, but we lack somewhere. While we go to industries, we lack some skills and we are not able to sell ourselves in the industries. So, to connect industry with students and to make them aware of corporate law and imbibe our students with skills that will sustain in industry, we will have today's panel discussion of corporate law beyond degrees from campus to corporate. I, on behalf of Association for Industrial Development (AID) and Rashtrasanta Tukdoji Maharaj Nagpur University, Nagpur, welcome you all to this panel discussion held under interdisciplinary studies. I welcome today's panelist, Shri Atul Khadse, Senior Legal Counsel, Asian Paints Limited, Mumbai; Shri Jitendra Jadokar, National Legal Manager, Tata Capital Housing Limited, Mumbai; and moderator of today's panel discussion, Mrs. Priyanka Kotwal, Manager, Coordination, All India Reporter, Private Limited, Nagpur; and coordinator of today's panel discussion, Dr. Prashant Kadu, Dean, Faculty of Interdisciplinary Studies, Nagpur, on the dais. Let us start with welcoming the guest. I would briefly introduce our panelist. Mr. Jitendra Jadokar, a seasoned legal professional with 22 years of experience in banking and finance industry, specializing in debt recovery litigation. He holds an LLM degree in business law from the prestigious postgraduate teaching department of law, Nagpur University, a distinguished alumnus of Nagpur University Law College. He has a brilliant academic record and was actively involved in extracurricular activities and student politics. Prior to his current role, he has practiced as an advocate and shared his expertise as a visiting lecturer at the PG Department of Law. He also served at ICICI Bank before joining Tata Capital, where he currently serves as the National Legal Manager and Construction Finance Recovery Head, a position he has held for the past 16 years. With his deep insights and strategic approach to legal affairs, he is set to bring valuable perspectives to our today's discussion. Please join me to welcome him. I invite Dr. Prashant Kadu sir to welcome our today's panelist. To welcome our today's panelists, I request Samay Bansod, Manager Council Member of University, to welcome our panelists. We are privileged to have with us Mr. Atul Khadse, a distinguished legal professional with extensive experience in leading global corporations, currently serving as Senior Legal Counsel at Asian Paints Limited. He has previously held legal roles at Hindustan Unilever Limited, a leading FMCG, and L'Oreal India
Private Limited, a leading cosmetic company where he plays a crucial role in shaping corporate legal strategies. Recognized in the corporate community as one of the finest collaborative business partners, he brings a wealth of expertise in corporate law. Beyond his corporate achievements, he is a dedicated academician, regularly delivering lectures on cyber laws and environmental laws at esteemed institutions involving postgraduate teaching department of law and the Judicial Officer Training Institute, a thought professor in the legal domain, and he is a avid speaker and writer with published works in both print and legal media. With his deep insights and strategic approach to legal affairs, he is said to bring valuable perspectives to our today's discussion. Please join me to welcome him. I invite Dr. Prashant Kadu sir to welcome our today's second panelist. I take this opportunity to introduce the moderator of today's panel discussion, Mrs. Priyanka Kotwal, an LLB graduate from Nagpur University Law College, main branch, and graduate and currently working as a manager coordination at All India Reporter AIR, a leading name in the media and publishing industry. Throughout her journey at AIR, she had opportunity to work in multiple roles, gaining diverse experience in the legal and publishing domains. She thrives on intellectual and academic discussions, and I truly enjoy engaging with expertise who bring new insights and perspectives. With the enthusiasm and profession for meaningful conversations, she look forward for steering this discussion in a way that brings a valuable insights for all of us. So I am privileged to welcome our today's moderator. I invite Dr. Prashant Kadu sir to welcome her. To start this program, let us know why this program is held. To introduce the panel discussion, I would like to invite Dr. Prashant Kadu sir. Dignitaries on the dais, the panelists for the very special session for you all, entitled as a corporate law beyond degree from campus to corporate. The title itself is trying to make you prepare with respect to the need of corporate houses, especially Mr. Jitendra Zadokar, Atulji Khadse, and the moderator who will be regulating the whole deliberation to make it as an interactive session, Mrs. Priyanka Kotwal. For us, it's a moment of pride that the Management Council member of Rasasandra Tukadoji Maharaj Nagpur University, Honorable Samaji Bansod is here. I welcome him off the dais. I offered him, but because he is occupied with another responsibilities also. Dr. Chaudhary, Dr. Sohail Parvaz, the faculty coordinator of different law colleges, student from law, MBA, BCom fraternity, and other fraternity too. We have invited other fraternity students too because कॉरपोरेट लॉ या लॉ जो है हर एक के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। हम इस हॉल में भी बैठे हैं तो लॉ के तहत ही बैठे हैं। ये बात अलग है कि कितने लोगों को हमारे यहाँ के एजुकेशन का लॉ पता है या नहीं, या ज़रूरत लगती है नहीं, वो अलग बात है। यहाँ हो ही ऐसे रहा है एज्युकेशन सेक्टर में की माझ्या काय कामाचं यापासून सुरुवात होते। कोणालाही काही बोलवलं की मला काय मिळणार,
मिळण्याच्या बाहेर जाऊन मी काहीतरी ऐकलं पाहिजे या भूमिका ठेवून जर आपण खऱ्या अर्थाने इथे बसलात तर तुम्हाला नॉलेजफुल सेशन होईल असं या छोट्याशा प्रिॲम्बलने माझं सुरुवात करतो. फ्रेंड्स, दिस इनिशिएटिव्ह AID Association for Industrial Development. It is a brainchild of the very visionary leader for the complete India as a nation and for specifically for us as a Vidarbhian. Honorable Mr. The Union Minister for the India, Nitin Ji Gadkari. Now why this AID come in picture? आप लोग यहाँ घूमते रहो, घूम तो रहे हो, नॉलेज तो ले रहे, पहले पता कर लेते AID क्यों आया. There are different industry associations which are working already, but there was no integration of industries. Industries, आप student हो तो industry gives jobs. Industries create economy for the nation. इसलिए आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना जरूरी है. तो इन पूरे इंडस्ट्रीज़ का हो सकता है कि विदर्भ में सबसे ज़्यादा कॉटन होता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन, अगर हमारे यहाँ भी आगे जाके गडचिरोली में स्टील इंडस्ट्री का काम हो रहा है या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम हो रहा है, डेयरी इंडस्ट्री का काम हो रहा है या IT इंडस्ट्री का काम हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन होना ज़रूरी था. इसलिए AID का फॉर्मेशन हुआ. और लीडरशिप जो कि नितिन जी की थी, तो इसका कोई एक्टिविटी भी होना चाहिए जिस वजह से यहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो. इसलिए फिर एडवांटेज विदर्भ नाम का एक इनिशिएटिव शुरू हुआ. टू प्रोजेक्ट द एडवांटेजेस ऑफ विदर्भा to the world, this advantage Vidarbha have been conceived by Honorable Nitin ji. विदर्भाचा ॲडव्हान्टेज काय, विदर्भात काय काय चांगलं आहे हे सगळं जगाला माहीत होऊ द्यावं. कशासाठी? जेणेकरून जगातली इन्व्हेस्टमेंट नागपुरात येईल आणि आलेली इन्व्हेस्टमेंट एक ग्रोथचा रस्ता बनवेल. त्यासाठी ॲडव्हान्टेज विदर्भ. विथ दिस टू प्रिॲम्बल, one why AID and why advantage Vidarbha, I come to this session, very specific session, a specific category, education and skill development. This education and skill development category is owned by Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University. We are thankful to AID for offering us this responsibility. की हे सगळं इंडस्ट्रीचं ग्रोथ तर होईल, पण या ग्रोथला लागणारा ह्युमन रिसोर्स जो आहे त्या ह्युमन रिसोर्समध्ये कुठल्या टाईपच्या स्किल सेट असल्या पाहिजे त्याच्याबद्दलची माहिती देणारे सेशन झाले पाहिजे. आणि त्यासाठी हा विषय आमच्याकडे आला. तो विषय लावून धरला समयजींनी आणि म्हणून समय बनसोडजी प्रत्येक वेळेस प्रत्येक एज्युकेशन सेक्टरच्या प्रोग्राममध्ये उपस्थिती दाखवतात. मग आमच्याकडे ही जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आली तर मी ॲज अ फॅकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज कुठला विषय असावा, तर मग समयजींनी सांगितलं कॉर्पोरेट लॉ हा विषय आहे, बिझनेस लॉ असा विषय आहे की ज्यामध्ये जगात आय इन्व्हाइट दी सिनेट मेंबर प्रथमेश फुलेकर टू हॅव अ सीट ऑन दी ऑफ द डायस. मग जगभर हा विषय चालू आहे तर त्या संदर्भात चर्चा व्हावी म्हणून कॉर्पोरेट लॉ बियॉन्ड दी डिग्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम कॅम्पस टू कॉर्पोरेट हा विषय आला. आता जर इंडस्ट्री ग्रोथ आपण बघतो आहे तर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिस्प्यूट आहेत, MOUs आहेत, B2B डिस्प्यूट आहेत, B2C डिस्प्यूट पण आहेत. मग त्यासाठी आपला लॉ ग्रॅज्युएट तयार असावा म्हणून हा प्रोग्राम विशेष करून इथे ठेवलेला आहे. इथे जे एक्सपर्ट्स आहेत, जसं अँकरनी सांगितलं की दोन्ही एक्सपर्ट अतुलजी खडसे हे सिनियर लीगल काउन्सिल आहेत एशियन पेंट्समधले. दुसरे एक्सपर्ट आहेत जितेंद्र झाडोकार, ते नॅशनल लीगल मॅनेजर आहेत टाटा कॅपिटल हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड. दोघंही
नागपूरचेच आमच्याच विद्यापीठाच्या लॉ कॉलेजचे स्टुडंट आहेत. अ बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. आणि नॅशनली लीड करतात. दिस इज दी मेन इम्पॉर्टंट थिंग. मग यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहे की खऱ्या अर्थानं स्टुडंट जर तयार होत असाल, तुम्ही काही सेकंड इयर, थर्ड इयर, फायनलचे असाल, तर खऱ्या अर्थानं आतापासनं तुम्ही तुमच्यामध्ये कुठल्या स्किल सेट आणल्या पाहिजे, तुम्ही स्वतःला कसं अवगत केलं पाहिजे, ही प्रोसेस जर आता सुरू झाली, यू कॅन ॲक्वायर द स्किल सेट बिफोर completing the degree program. Many times it happens, we start preparing for developing the required skills as per need of the industry after completing our graduation. ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद देखेंगे, पहले ग्रेजुएशन की प्री रिक्विजिट जो है कैंपस करिकुलम के हिसाब से एग्ज़ाम दे देते हैं, फर्स्ट क्लास लेते हैं, डिस्टिंक्शन लेते हैं, पास हो जाते हैं. फिर पास होने के बाद सोचते हैं, डियर फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया में जर आप वैसा करोगे तो दूसरे और लोग आपके रेस में आ जाएंगे. तो आज का सेशन जो रहेगा, आपको ये बताने की मंशा से ये सेशन हो रहा है कि आप जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कौन से भी फैकल्टी में हो, तो आपको आपका करियर प्लानिंग कैसे करना है. अगर टॉकिंग अबाउट दी कारपोरेट लॉ की ज़रूरतें क्या है, इंडस्ट्री में कारपोरेट लॉ में अगर आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना है तो कौन से स्किल सेट, कौन सी पढ़ाई आपको करना होगा जो कि इंडस्ट्री या कारपोरेट हाउस आपको तुरंत सिलेक्ट किया करेगा. फ्रेंड्स, यहाँ इस पूरे पैनल डिस्कशन में कारपोरेट लॉ तो एक सेक्शन है ही, लेकिन जो नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क NSQF ने जो टॉप 15 स्किल्स बताए हुए हैं जो 2025 में लगने वाले हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी फ्रॉम दिस हाउस नोज अबाउट दी NSQF एंड इट्स फ्रेमवर्क. ये मेरा फ्रेमवर्क नहीं है. इंडिया में जो ह्यूमन रिसोर्स डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो एडवांटेज है या फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ये इसके बारे में अभी नहीं बता सकते. वी आर टॉकिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. वी आर हैविंग 62% ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड. अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ की लोक संख्या में 62% 90 करोड़ के आसपास होता है. और एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स आपकी इंडस्ट्री बोलती है हम जो बच्चे क्रिएट करते हैं वो 25% से ज़्यादा नहीं है. 25% एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब. आप सभी जान ले, अच्छा है बुरा पता नहीं मेरे यूनिवर्सिटी के लेवल पे, कि हम जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से आप जो ले रहे हैं उससे कंपनी के काम का खाली 25% है, ऐसा आप बोल रहे हो. तो ये जो 90 करोड़ के आसपास 25 करोड़ लोग जो एम्प्लॉयबल हो गए और 25% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाएंगे. लेकिन ये 25% की जो प्रिपरेशन है, तैयारी करने का जो मौका है, आज के सेशन के माध्यम से आपको मिलेगा. आप ग्रहण करने की अवस्था में यहाँ बैठे, क्योंकि द यंग पॉपुलेशन, समय जी, young means the very problem with the youngsters of this nation, they doesn't come with the mindset of acceptance. माझी सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे, जे काही जाते ते जाऊ देण्याचा प्रयत्न करा. हे जे आपले तर्काचे काही कुलूप लावून ठेवलेले ते लावून ठेवू नका. ग्रहण करा. त्याचं प्रोसेसिंग देवाने दिलेले डोकं आहे ते चांगलं करणारच आहे. आता याला पडू द्या. एवढ्या छोट्याशा अपेक्षेने आज जो ॲडव्हान्टेज विदर्भ 2025मध्ये स्पेशल सेशन जे होते आहे एज्युकेशन अँड स्किल डेव्हलपमेंट सेक्टरच्या अंतर्गत, त्याकरता मी आपण सगळ्यांना वेलकम करतो. एक्सपर्टला सुद्धा वेलकम करतो की या सेशनच्या माध्यमातून तुमचं जे काही ज्ञान आहे ते थोडं ज्ञान या पोरांना देऊन विदर्भाचं जे स्वप्न नितीनजींनी ठेवलं आहे की हा विदर्भ जो आहे हा डेव्हलप रिजन ऑफ दिस कंट्री झाला पाहिजे, त्या स्वप्नामध्ये आपण छोटंसं कॉन्ट्रीब्युशन करूया. तुम्ही आणि
आम्ही सगळे एक्सपर्ट ज्युरी पॅनलिस्ट मिळून या सेशनला चांगलं फ्रुटफुल करूया. एवढ्या आय वेलकम दी ऑनरेबल प्रो व्हाईस चान्सलर ऑफ दी राजसंत तुकडोजी महाराज नागपूर युनिव्हर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र काकडे इन दिस हॉल विथ अ राऊंड ऑफ ॲप्लॉज. ह्या सेशनच्या मार्फत मी फक्त शेवटची अपील परत करून देतो की नितीनचं जे स्वप्न आहे या विदर्भामधला जो सगळे रिसोर्सेस आहेत, नॅचरल रिसोर्सेस प्लस ह्युमन रिसोर्स, या रिसोर्सच्या माध्यमातून विदर्भाला मोठं कसं करता येईल या संदर्भातली भूमिका या सेशनच्या शेवटी जरूर निघेल एवढ्या अपेक्षेने मी इथे थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, Kadu sir, for introducing us the valuable insights and make us understand the importance of today's session, and hope we all with open minds will enjoy listening and gain or imbibe valuable insights of today's program. With this, I hand over the session to Priyanka ma'am. Good afternoon, everyone. I would first like to thank Mr. Kadu for inviting me as a moderator. So also I would like to thank the audience for participating. I would also welcome our panelists, Mr. Atul Khadse and Jitendra Dadokar. I hope everyone here is comfortable. Am I audible? Okay. Can I get a big yes? Oh, that's great. When I say hi, you have to say hello. Is this fine? ओके तो आप सब लोगों ने कॉफ़ी विद करण शो तो देखा ही होगा. तो मैं आज उसके जैसे, एक्चुअली उसके जैसे नहीं, उसका तो महंगा चश्मा है, मेरा थोड़ा सस्ता वाला है, तो 40+ वाला चश्मा लगा के आई स्टार्ट विद द डिस्कशन. Jitendra, as we talk about what lies beyond degree, which is one of his is from campus to corporate. And we all know that the road or the journey to corporate is not easy. It's like a zigzag dance. So what do you actually mean by corporate in today's world? First of all, I would like to thank Pro VC sir and Management Council member sir. Thank you for giving this opportunity and inviting us. Actually, एक करियर में ऐसा एक समय आता है कि सब लोग सोचते हैं कि हम जहाँ से आए हैं, मराठीत म्हणतात तसं मातीचं देणं लागतं तसं विद्येचं देणं पण विद्यापीठाला लागतं, आणि ते आज तुम्ही तुमच्या मार्गदर्शनाखाली, सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला मिळतं आहे. त्यासाठी तुमचं मी पहिलेच आभार मानतो. सॉरी मी प्रोटोकॉल तोडला, पण समोर एवढे विद्यापीठाचे अधिकारी बसले आणि त्यांना उद्देशून काही न बोलता सुरू करणं मला अवघड वाटलं. प्रियंका, coming to your question, so corporates, it's a very simple thing. If I have to give a very crude definition, any organization which works for profit under a hierarchical structure. Hierarchical structure means board of directors, managing director, CEO, chief financial officer, and various executives and various departments. So it's a plain and simple definition. I do say that it's a profit oriented thing. However, there are some corporates, some organization which works for non-profit also. However, the important aspect of any corporate is they work for a purpose, they work for a mission, and they have their own set of values. Values may differ from a country to another country. Value may differ from organization to organization. So I will not give that corporate laws definition, what is corporate, Solomon versus Solomon. I will not speak that. I know we have various faculty students here, but that is the crude definition. Atul, would you like to add? Thank you. Dignitaries of the dais, dignitaries on the dais, thank you for giving this opportunity. Speaking here is coming back home. And let me, before I get into the question, let me tell you students, the only difference is that it was just few decades back we were sitting there, and today we are here. And rather I would say that when we were sitting there, probably we were not having this kind of events on our head,
we did not have that vision, but yes, we had those professors, and we had many professors. I mean, most of you, sir, you must be even have met them or might have heard about them. We are blessed to have Dr. Where we are today. And let me tell you, students, very candidly, we used to mock our teachers, we used to make fun, but today we realize the importance, you know. So whatever they tell you, just try to observe 20% and act 10%, that is more than sufficient. Coming to corporates, I mean, nobody better than us can sort of relate to it. बिकॉज हमने लॉ यहीं से किया, हमने ग्रेजुएशन यहीं से किया, हमने प्रैक्टिस भी की, एंड somehow destiny wanted we went into corporates, and we had good pedigree of corporates. Corporate, as Mr. Jitana rightly said, you know, it's a hierarchical structure, बट समटाइम्स एक वो लगता है ना कि शायद गधा मजदूरी है, मैं उससे अपना तो बिजनेस कर लूँ बेटर है, बट आई कैन टेल यू इट्स नॉट लाइक दैट. कॉर्पोरेट इज़ फन. It's fun if you want to expect it as a fun and if you act and take all your challenges candidly. Now, corporates can be anything. I mean, it can be multinational companies as we know, or it can be MSMEs, it can be even startup, it can be your NGOs, it can be your joint ventures. So there are many segments of corporate. The only thing is that when we are having this kind of event, when we know that our visionary leaders are wanting industries to come and set their foots in Vidarbha, we should be ready. We should be empowered that when the opportunity knocks door, we should be the first one who should be selected. And I mean, I could have made the statement at the latter stage of the discussions also, but probably this is the right place. After having worked 20 years close in metros, in many corporates, I can tell you, विदर्भ जैसा टैलेंट नहीं है, नो. सो ओनली थिंग रिक्वायर्स इज हीरे को थोड़ा तराशना पड़ता है. दैट्स द ओनली थिंग विच वी नीड टू डू, एंड दैट्स वेरी इजी टू बी डन, एंड आई थिंक यू गाइज हैव दैट पोटेंशियल. इट्स जस्ट अबाउट सम अपस्किलिंग, सब डेवलपमेंट. सो कॉर्पोरेट इज समथिंग one should not construe as just an organization or a company I am going to work. It can be anything. It can be in finance sector, it can be in media sector, it can be in education health sector, it can be in manufacturing or simple carrying forwarding agent, it can be a corporate. So I think today the world corporate is big enough to accommodate all the thoughts and every sphere of life. So, do you think that corporate jobs are lucrative? And what are the perks of it? Because after all, everybody is after money. That's very tricky question to answer. You know, बड़ा जब हम corporate हम we used to practice. You know, I've practiced for almost eight years. I was a faculty also in Nagpur University. Used to set papers, invigilator, everything. And then we moved to corporates. People say, okay, practice नहीं चल रही इसलिए corporate में गए. You know, that happens. Or when we were in corporates, we used to say, यार practice वाले ज़्यादा पैसा कमा रहे, हम नहीं कमा रहे. No, because we were not our own bosses. We used to take instructions. But fun apart, corporate job is lucrative. And again, if you consider it as a 9 to 5 job, it's not a lucrative thing. You're working, you're going, doing your work, executing your day-to-day task, that's it. If you do that at home, a company, or even at your shop, it's going to be monotonous. If you don't take your job as a job, but take it as an entrepreneurial spirit and take it as your own thing, then that gives a different level of kick. I think a kick nothing else can give like corporate. And being lucrative, I mean, fortunately with the companies I have worked, I have visited Korea, I visited Japan, I visited Singapore. I was in Paris for 15 days. And then I have seen all the pubs and the best parties. But having said that, that's one aspect of it. But I have also dealt with highest level of intellectuals. I have met counterparts from different countries, sat into certain negotiations, into certain deals which were very voluminous, you know, high stake deals. So that's kind of fun which corporate provides. So it's definitely in terms of, you know, monetary part,
it's lucrative. Did you want to add something? Yes. So I will again give one very local example. Suppose Pakode Wala. Please pardon me if somebody is related to Pakode Wala. I have seen Pakode Wala's growth from one kadai to now a big kind of thing. Any worker or any helper working in Pakode Wala would not have got any share in Pakode Wala's profit. I am making a general statement. But however, corporate, your pay structure is incentive driven. It is linked to your company's performance. Roughly, in most of the organization, your salary, out of 100 rupees of the salary which you will earn, 30% of your salary is linked to company's profit. If your company is making good profit, you will obviously get that pie in that profit. That is one aspect. Secondly, my dad was government servant, so he used to get transfer every now and then after 3 years, 4 years. That aspect is not there. More, there is a stability. Plus, there are various perks like health insurance, then various facilities at par with the government. So I will definitely say it's a lucrative job, and it gives you, at times you will also, at certain hierarchy level, you will get the ESOPs. ESOPs means the equity, the shares of that particular organization. So if again, that is unlikely in a normal example which I have given. So definitely it's a lucrative job, and you can scale to the higher level. Yes, Priyanka. Just one more thing to add. One thing about monetary aspect of it, other thing definitely what Jitendra rightly said, it gives you insurance, medical insurance, health benefit, pensions, PF and all that. Now these are all your perks. Coming to your personal and professional development, corporate also offers a structured path of growth. So one might say that fine, if I am an independent entrepreneur, or if I am say practicing, or if I am doing my own shop, am I not progressing? You might be progressing, but probably not at the scale, or you might not have that vision of where else you can go. Corporates provide you a very structured path. They also take care of their employees, and they provide you a lot of trainings on the job and also skill development opportunities. What happens is, when you are into corporate, you learn nuances of business. You start thinking like that you own the business. I'm a lawyer, but I'm not the lawyer of the company. I am working with my marketing team. I am working with my sales team to grow the business. And when I'm working from their shoes, it gives me a very different perspective. Now, when I understand that business and that nuances, it gives me a bigger picture. So I think from that perspective, giving a structured growth and job stability is again an important aspect of corporate. And definitely I can tell corporates are also very much lucrative. Over to you, please. Great. Jitendra, giving it your extensive experience in corporate, and you have met various kinds of candidates coming from the metros like Bombay, Bangalore, and candidates coming from Vidarbha or two-tier cities like us. You both have been from here, and your career has been extremely nice. So I would like to, can you just let us know as to, is there any different in both the candidates? Any noticeable changes? हेलो, मैं इसको ना ये क्वेश्चंस का आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट, जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ एक्सपोजर है वो. दूसरा स्किल सेट, और तीसरा स्किल सेट जो सर ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोला, और तीसरा इज़ आई विल कॉल इट एज अ माइंड सेट, जो हमारा जज्बा है या जो हमारा थिंकिंग है. ये 3 चीज़ों को मैं आई विल कंपेयर विद द मेट्रो गाइड्स. इंसिडेंटली बट नॉट परमानेंटली हम लोगों को थोड़ा डिसएडवांटेज है कि जो मुंबई में एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को, देयर आर वेरियस कॉर्पोरेट, देयर आर वेरियस सेमिनार्स लाइक दिस विच इज़ गेटिंग ऑर्गेनाइज प्रॉब्ली एनुअली सर. सो ये ऐसे सेमिनार्स वहाँ पे मंथली होते, एक्सपोजर्स है. लोग, क्राउड का डेंसिटी, पॉपुलेशन का डेंसिटी इतना है कि एक बिल्डिंग में एक बंदे को अलग अलग कॉर्पोरेट्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मिलता है, वो यहाँ पे थोड़ा कम होता है.
स्किल सेट उनके इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है, जो कॉरपोरेट्स है, वो उनका अलाइड रिसोर्सेज के लिए सेटअप करते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। आपको पता है कि हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यहाँ पे इंजीनियरिंग होते हैं और पुणे में कोर्सेज करने के लिए जाते हैं, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है। बट ये सब चीज़ें आज के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, और आज हमको जैसे विजनरी लीडर्स मिले हैं, नितिन सर या देवेंद्र सर जैसे, तो ये गैप ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 5-6 साल का गैप है। वी विल मेक इट अप विद मिहान ग्रोथ एंड एवरीथिंग। दूसरा, आपके जो स्किल सेट है जो कंपेरेटिवली हमको शायद इंटरव्यू पैनल में कम दिखते, विच यू कैन ऑलवेज, आप लोग उसको मेकअप कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन, थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू कोर्सा, वेरियस कोर्सेज। बट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लीजिए, बट ये सिंपल है कि हमारा माइंडसेट वो डेवलप होना चाहिए। मुझे नागपुर छोड़ना है क्या? नागपुर की ग्रोथ होगी, नागपुर में जॉब मिलेगा, अच्छा है। मुझ में वो माइंडसेट है क्या कि मैं मेरे पेरेंट्स को मेरा पुश्तैनी घर छोड़ के बॉम्बे में या कोई भी बड़े मेट्रो में ट्रैवल करके जॉब करूं? वो माइंडसेट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा, धोनी मूवी में आपको अगर याद होगा कि जब एक मैच में युवराज सिंह से रणजी में धोनी हारता है तो उसके टीममेट के साथ बात करता है कि हम पता है हम कहाँ आ रहे। वो एक डायलॉग है, आप यूट्यूब पे डालोगे ना, पता है हम कहाँ आ रहे, तो आपको वीडियो आएगा। तो उसकी टीम, युवराज की टीम को वहीं पे हार जाती कि ये युवराज है, इसका इतना बड़ा नाम है, अभी तो मैं गया। और जो 12th फेल मूवी में वो हीरो ने जब उसको जज्बा आता है ना कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, वो, सर मैं आपके सामने स्टेटमेंट कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ पार्डन मी, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जज्बा स्टूडेंट्स, और ये आपके टीचर्स नहीं ला सकते, ये जज्बा हमको खुद को लाना है। ये मेरे हिसाब से डिफरेंशिएटर है। Atul, would you like to add on to it? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज हम लोग जब हमारे इंडस्ट्री में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तब हम लोग CVs बुलाते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, तो क्या हमको एक अपरेंट ट्रेंड दिखता है या एक डिफरेंशिएशन फैक्टर दिखता है बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ मेट्रोज वर्सेस B टाउन और C टाउन सिटीज़ और डेवलपिंग सिटीज़। मैंने जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि क्या टैलेंट की कमी है, लिख लो मेरे से, नहीं है। व्हेन वी मूव्ड, आज हमारा एक ग्रुप है एंड वी आर सरप्राइज्ड कि हर महीने में 1-2 लोग उसमें ऐड हो जाते हैं जो नागपुर, विदर्भ, गोंदिया, मतलब विदर्भ एज इन गोंदिया, गढ़चिरौली, यहाँ से जाके वहाँ सेटल हुए हैं। नाउ दे आर डूइंग एक्सेलेंटली वेल। सो एज फ्रॉम द टैलेंट परस्पेक्टिव कोई कमी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ब्रेक करनी पड़ेंगी। कशाला जायचं, जाऊ दे, नाही ते 10,000 कमी भेटले चालते नहीं, पहले जाते रहते कमा के फिर वापस आएंगे, वो चलेगा। या हम वो तैयारी यहाँ करेंगे कि जब वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आएंगे हम उसके लिए रेडी रहेंगे। सो वो माइंडसेट आपको ब्रेक करना ज़रूरी है और वो माइंडसेट कोई और आपके लिए नहीं करेगा। सो आई थिंक ब्रेकिंग दैट ट्रेडिशनल माइंडसेट व्हाट ही वाज हार्पिंग अपॉन, डेवलपिंग स्किल सेट। आज की डेट में आपका यूजुअल स्क्रीन टाइम कितना है? 3 घंटे होगा मिनिमम। मैं ज़्यादा ही मिनिमम होगा। बता रहा हूँ, ठीक ज़्यादा ही है? होगा। मुझे पता है कि मिनिमम 3 घंटे तो चार्जिंग का टाइम है, बिकॉज बाकी टाइम तो स्क्रीन टाइम ही है। अच्छा, किसने कोई बस्सी को जानता है यहाँ पे? सुना है बस्सी के बारे में? स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट? व्हेन ही केम इनटू मूवी, एक बहुत फेमस उसने डायलॉग निकाला था जब उसकी पहली मूवी आ रही थी, बस्सी कहाँ जा रहे हो? एंड हर जगह उसके पोस्टर थे औकात से बाहर। सो अस गाय, स्मॉल टाउन, he was also a lawyer, now turned up a stand up comedian। लेकिन एक जज्बा है कि कुछ ना कुछ करना है या कुछ नया करके देखना है, या एटलीस्ट जो मुझे आता है मैं उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करूं। सो वन इज द ब्रेकअप ऑफ ट्रेडिशनल माइंडसेट एंड सेकेंड इज डेफिनेटली द स्किल गैप, जो थोड़ा बहुत है हमें उसको पॉलिश करना है। जैसे मैंने बताया कि आप हीरे हो, थोड़ा सा उसको और पॉलिश करने की ज़रूरत है, विदर्भ चमकेगा बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू अतुल। ये जो इनडिसिप्लिनरी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो इनडिसिप्लिनरी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, इनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? ओके, आई नो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉ एंड वी बोथ आर फ्रॉम द लीगल टीम।
बट आई एम मेड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बाकी स्ट्रीम से भी लोग हैं, राइट? MBA से भी है कोई? मैं भी MBA कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, Good. या वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। देन मेरे ख्याल से CS या कॉमर्स फैकल्टी से कोई और होगा, राइट? Interdisciplinary studies is a very vast subject. I don't know how sir able to manage it, and sir is dean of that subject. हमको एक ही subject कम पड़ता है, what's a combination and amalgamation of subjects. Now, what are the avenues and options available? I'll tell you certain surprising stories, and I've witnessed those stories. I have a pedigree of certain organizations, जैसे Unilever, which is #1 FMCG in the India. I was 7 years with L'Oreal Cosmetics, which is like #1 worldwide in cosmetics. I know what is your, how entire makeup is done. And then now in Asian Paints, which is again, 10th in world in terms of paint manufacturing. It's a chemical. And again, before that, before this journey started, I was a consultant for almost 4 to 5 years. A company called Jaiswal Nico Industries, which is in Nagpur, if you have heard about it, right? Which is Central India's largest conglomerate on iron and steel manufacturing. I've seen various roles, and you will not believe, I have seen people who have done law have moved to HR, people who have done HR have moved to IT, and people who have done engineering are in education, and people who are at different degrees are now adopting different role altogether. So let me tell you, and the very fact that we thought of, having this title is that don't limit yourself to the degrees. We are going beyond degrees. Degree एक जरिया है step up करने का, ठीक है? एक particular theory है जिसको हम बोलते हैं springboard theory. आपका education finish हुआ, फिर आप springboard में गए. Springboard आपने देखा वो ऐसे रहता है. आप springboard पे चढ़े और आपने jump ले ली और फिर आप किसी industry में चले गए. So डिग्री एक्ट्स एज योर स्प्रिंग बोर्ड, लेकिन स्प्रिंग बोर्ड के बाद आप जाके कहाँ गिरोगे या आपको कहाँ लैंड करना है ये आपके हाथ में. अगर आपको पता है कि कहाँ जाना है तो आप लैंड करोगे, नहीं तो आप गिरोगे. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इफ यू आस्क मी करियर ऑप्शन टुडे, देयर आर मेनी फैसेट्स ऑफ करियर ऑप्शन. देयर आर मेनी सर्टिफिकेशंस व्हिच आर अवेलेबल. एज आई सेड, आई टोल्ड यू द रीजन. I am also doing MBA. I am in my first semester. I have completed my first semester. Why? Because there is an option available to me, and I thought, why not? Let me complete. If I take an example of, say, commercial background, finance background, हर कंपनी में एक टीम होती है which is called as audit team. Audit का काम होता है कि जितना कंपनी खर्चा कर रही है, जो भी काम कर रहे हैं, वो बराबर कर रहे हैं कि नहीं. They are sort of a watchdog. ठीक? They are maker checker. वो हमको भी क्वेश्चन करते हैं कि आप यहाँ गए थे, आपने क्या इतने पैसे खर्चा किए या आपने ऐसा काम किया है, वेदर दिस इज इन पॉलिसी और नॉट. एक ऑडिटर के रोल के लिए एक क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर. ठीक है, 1.5 साल का कोर्स है. आप इजीली ऑनलाइन उसमें रजिस्ट्रेशन कर लो, पढ़ लो, यू अर्न दैट सर्टिफिकेशन. नाउ दैट सर्टिफिकेशन विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट डिफरेंटली व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब, or when there is an opportunity available and there are 10 candidates. If you have CFE, I'm just given one example of certification. If you have CFE, you will stand out. ऐसे बहुत सारे courses हैं. I'll undertake another stream, media, Google Ads and media. Like, I was in my day-to-day job fundamental. We do lot of celebrity agreements. आप किसी भी सेलिब्रिटर का नाम ले लो, ए लिस्टर सेलिब्रिटी का, एंड समवेयर इन माई लाइफ आई मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड एंड निगोशिएटेड विद देम टू ऑन बोर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर इवेंट्स, फॉर अपीयरेंसेस. अब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के पीछे कितना काम जाता है. यू हैव इन्फ्लुएंसर्स, यू हैव सेलिब्रिटीज़, उनकी एक मीडिया टीम होती है. वो सेलिब्रिटी स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, उसके क्या एंगल दिखने चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट कैसी है, आपके स्टोरी बोर्ड कैसे हैं, कहाँ शूट कर रहे हो, क्या लाइसेंसेस रिक्वायर्ड हैं, कितना बजट है,
आप उसको कहाँ स्क्रीन करोगे, उसके लिए मीडिया स्लॉट्स कैसे बाय करने हैं, वेदर इट इज़ प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, आप उसको कैसे उसको कैटेपुलेट करोगे। बहुत सिंपल है। आप इसके लिए यू कैन डू लॉट ऑफ मीडिया सर्टिफिकेशन कोर्सेज। टुडे यू आर बेनिफिटेड व्हेन वी वर सिटिंग एट योर एज as audience, probably we only had Rediff, Yahoo and Google with limited data. Today you have avenues. अगर आप 4 घंटे का स्क्रीन टाइम है इंस्टा के लिए, सिर्फ आधा घंटा आप उसमें से निकाल लीजिए और एक सब्जेक्ट ले लीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, और ये जानकारी आपको आज लिखनी है कि आप कल कौन सी जानकारी लोगे। सो इट्स नॉट, सी टेक दिस रूल, आप कल बैठ के नहीं सोचोगे कि आज मैं क्या पढ़ूंगा। आपको हर दिन एक दिन पहले एक्टिविटी करनी है कि आप आज लिख लो कि कल मैं मीडिया मैनेजमेंट के बारे में पढ़ता हूँ, ठीक है। अब दूसरे दिन आपको जब भी समय मिले यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो लगा लीजिए, आई एम नॉट सेइंग विच वन, ठीक है, वॉट एवर यू लाइक, वेदर इट इज़ पॉडकास्ट, वेदर इट इज़ ऑडियो कास्ट और वेदर इट इज़ यूट्यूब वीडियो, हियर इट, लिसन इट, you might pick up something important. And that is where these kind of certifications help you. Keep on doing skill sets, improve your skill set. So I think ये आप जितने जितने सर्टिफिकेशन करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और इस चीज़ का नुकसान नहीं है। क्या होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, हो सकता है उन्हें CFA नहीं चाहिए, हो सकता है उन्हें मीडिया मैनेजमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, बट आपने सीख लिया, राइट। समवेयर डाउन द लाइन इट विल ऑलवेज हेल्प। So, I mean saying there are many streams. I'm sure my colleague Jitendra, he has more than 2 decades of experience in banking, finance industry. I'm core from manufacturing industry. He will also have many things to share. हेलो, मैं इसमें इतना ऐड या मैं इसको सम अप करूँगा। आपकी जो बेसिक डिग्री है, बीकॉम है, लॉ है, उसके साथ अलग अलग जो सर्टिफिकेशंस है, आप लॉ हो, आपको एक कॉस्ट रिलेटेड सर्टिफिकेशन करना है, CFA, CPA, वो अवेलेबल है। वो सर्टिफिकेशन आपको एक एडेड बेनिफिट देगा। ये कॉरपोरेट्स का मैं एक आपको फंडामेंटल एग्जांपल, आप सब ने यूट्यूब पे देखा है, दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी प्रोवाइडर कंपनी उबर, उसके पास खुद की गाड़ी नहीं है। ज़ोमैटो, स्विगी, उनका एक रेस्टोरेंट नहीं है पूरे भारत में, लेकिन खाना हम ज़ोमैटो, स्विगी के बिना। तो इट्स अबाउट आइडिया, इट्स अबाउट, लेकिन ये आइडिया आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये आइडिया हमको आने के लिए हमारा जो बेसिक एजुकेशन हुआ है वो एक प्रोसेस है। हमारा एक एप्टीट्यूड उसमें क्रिएट हुआ है, हमारा एक नेचर, हमारा एक पर्सनालिटी उसमें से क्रिएट हुई है। बट आपको अलग अलग एवेन्यूज़ के अलग अलग कोर्स, आप कोई भी डिसिप्लिन के हो, तो आप एक फाइनेंस का कर लीजिए, आप एक लॉ का डिप्लोमा कर लीजिए, आप एक एनवायरनमेंट, सर बहुत बड़े सस्टेनेटिव डेवलपमेंट के मतलब स्टूडेंट है या उसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं, हैपनिंग थिंग है। तो ये चीज़ें आप कोई भी एक स्ट्रीम पकड़ लो, अपने को मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ऑफ मास्टर ऑफ नन नहीं होना है, कोई भी 2 डिसिप्लिन पकड़ लीजिए और आप उसको फिर आगे फॉलो कर सकते हो। आई जस्ट ऐड वन लाइन, एक मैं आपको हैक बताता हूँ, लाइफ हैक्स बोलते हैं आपके लिए, मतलब मेरे लिए तो वर्क कर गया, इट्स अप टू यू। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है, चलो नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता, व्हाट आई डू, आई विल ओपन लिंक्डइन पता है आप सबको, मैं मेरे स्ट्रीम में डालूंगा सीनियर लॉयर या इन हाउस काउंसिल या जनरल काउंसिल एज वे से, राइट, और मैं रैंडम प्रोफाइल चेक करूंगा। आई एम नॉट सेइंग फोटो चेकिंग, आई एम सेइंग प्रोफाइल चेकिंग, एंड रीड कि उन्होंने उनकी क्या क्या डिग्रीज हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने लिखा हो CIPP, CIAPI, नहीं पता, कॉपी पेस्ट कर लो, गूगल में चेक करो कि क्या है सर्टिफिकेट। फिर मैंने बताया एक दिन सिलेक्ट करो कि मैं इस बारे में समझूंगा, पॉडकास्ट सुनो, अच्छा लगा, एनरोल करो, कंप्लीट करो, मूव ऑन। So this is how one life hack can help you. Just keep on looking what people are doing, inculcate and make yourself ready. Jitendra, what are the key attributes or the basic essentials that an organization looks for in a fresh graduate? इसका मैं बहुत लंबा आंसर भी दे सकता हूँ, 10 मिनट का। But actually हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं टाइम कम है।
और इसका मैं सिंपल आंसर मैं दे सकता हूँ कि आपकी डिग्री आपके पास हो गई, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी से आए होंगे तो आपने हर जगह आए, प्रिज्यूम आई नो नागपुर कैसे, लेकिन आपने ट्रैफिक के रूल्स फॉलो किए होंगे, ठीक है। रेड सिग्नल किसी ने जंप किया होगा ना, लेकिन ठीक है, आपको पता है रूल्स फॉलो करने, ठीक है। और मैं यहाँ पे जब 2:30 बजे आया तो हॉल पूरा भरा हुआ था, ठीक है। ये सब चीज़ें आप स्टूडेंट्स ने की आज, कि हाँ या ना, किया ना आप? चलो रेड सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि नहीं तोड़ना है। ये 2 एट्रीब्यूट्स इनफ है आपके डिग्री के साथ आपको कोई भी करियर के मतलब हाईएस्ट मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो उसको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि कोई भी कंपनी एक प्रोसेस से चलती है। जैसे अतुल की कंपनी है, अतुल की कंपनी एशियन पेंट्स है, तो उनका एक सप्लाई चेन है कि ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, यहाँ पे उसका रॉ मटेरियल आएगा, वो रॉ मटेरियल आने के बाद मैन्युफैक्चर होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, ये रिटेलर के पास जाएगा, इसका ऐसा मार्केटिंग के बाद ऐसा होगा। तो ये एक उनकी प्रोसेस है। अगर सपोज आपको एशियन पेंट्स में जॉब मिल गया कोई भी, तो आपको सिर्फ वो प्रोसेस फॉलो करना है। तो आपने जो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो किए ना यहाँ पे आने के लिए, आपको वो प्रोसेस चलाना है और कुछ नहीं करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन आज की वर्ल्ड में प्रोसेस के बिना नहीं चलती। दूसरा है पंक्चुअलिटी। मैं टाइम पे जाऊँ, मैं समय पे ऑफिस पे जाऊँ, मैं समय पे मेरा काम कंप्लीट करूँ, बस ये है। ये 2 चीज़ें आप कर लो, आप मेरा नंबर ले लो और मुझे 10 साल के बाद कॉल करो कि सर मैंने ये 2 चीज़ें की लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला, ऐसा होगा नहीं। बाकी यस, देन देर आर कम्युनिकेशन स्किल, फिर वो लिस्ट है जो आप गूगल भी करोगे तो आपको मिल जाएगी। बट ये 2 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। हमारा नहीं होता, मेरा भी नहीं था, तो मैं आज भी पता नहीं मुझे अच्छा है क्या, लेकिन आई ऑलवेज कोई भी मीटिंग या कोई भी क्लाइंट से मिलने के लिए वी प्रिपेयर, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, क्या पॉइंट्स, यू प्रिपेयर, यू कैन वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। एडेप्ट, अब कोई भी कॉरपोरेशन में जाओगे तो वहाँ पे कल्चर अलग हो सकता है। एग्जाम्पल, ए कंपनी में कल्चर होगा कि वो MD CEO को पहले नाम से बुलाएंगे। जैसे अतुल MD है इसका एशियन पेंट्स में, अतुल को अतुल के नाम से बुलाऊंगा। कोई कंपनी में उनको अतुल सर, बॉस, ऐसे कल्चर होते हैं। कुछ कंपनीज में कल्चर होते हैं कि आपको डे एंड नाइट काम करना पड़ सकता है, क्योंकि वो टाइम ड्रिवन और टारगेट ड्रिवन कंपनीज होती है। एट टाइम्स आपको दिन रात काम करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल है, एडेप्टिबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सिंपल चीज़ है कि हाँ मुझे यहाँ पे आना है ये हॉल में, तो मैं ये रोड से आऊँ कि दूसरे रोड से आऊँ जो मुझे ट्रैफिक कम मिले, या फिर मैं लेट पहुँचूँ और मैं कड़ू सर सर ट्रैफिक ही इतना था मैं नहीं आया, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, मैं दूसरा रास्ता लूँगा। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये बेसिक चीज़ है। अतुल, यू कैन ऑलवेज ऐड टू दिस। ओके, I'll not give definitions on it. मैं आपको एक हैक बताऊं, चलेगा? और अरे एनी टाइम, दैट्स ऑल व्हाई वी हैव कॉल्ड यू फॉर। पिकिंग अप फ्रॉम व्हाट जितेंद्र सेड, कम्युनिकेशन स्किल पैदाइशी कोई लेके नहीं आता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि निकलते से हाय हाउ आर यू, आई एम वेरी वंडरफुल फाइन, नहीं होता। हाँ, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है। एक छोटा सा हैक देता हूँ, कभी करिएगा, बहुत मज़ा आता है। अकेले में करना है तो इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है। कोई भी मैगजीन उठाइए, पेपर उठाइए, जो आपको लगता है, ठीक, एक पैराग्राफ पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर लैंग्वेज यू वांट, चूज दैट वन पैराग्राफ, स्टैंड बिफोर अ मिरर, ठीक, रीड आउट दैट पैराग्राफ लाउडली। और जब आप रीड कर रहे हो, मोबाइल ऑन रख के उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब आपने रिकॉर्ड कर लिया, पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, पूरा पैराग्राफ, और अगर आप उसको याद करके कुछ खुद होके बोलना है या रैंडम 10 सेंटेंसेस बोलना है तो दैट विल बी एडेड एडवांटेज। करो। अब आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, दरवाज़ा बंद है, आप अंदर अकेले हो। अब आप फिर से उस क्लिप को चलाओ, ठीक है। इस बार आप सिर्फ मिरर में देखो, आपको आवाज़ फ़ोन से आ रही है, और आप मिरर में देखो कि आप कैसे दिख रहे हो, ठीक है। बोल तो आप ही रहे थे पहले, लुक एट दैट, हियर इट एंड सी हाउ यू आर बीइंग प्रेजेंटेड। एक्टिविटी 1। सेकेंड एक्टिविटी, replay the video, close your eyes, now you are only listening,
लिसन, आपने क्या बोला, आपने कहाँ पे पॉजेस बराबर लिए, नहीं लिए, या आप कौन सा सेंटेंस इंप्रूव कर सकते थे। तीसरा, 2 एक्टिविटी हो गई। तीसरी एक्टिविटी, रिप्ले द वीडियो, म्यूट इट, और फिर सिर्फ देखो वीडियो को। पहले जब आप मिरर में देख रहे थे और जब आप वीडियो को देख रहे हो, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि पहले जब आप मिरर में देख रहे थे, आप खुद को आवाज़ के साथ देख रहे थे, एंड व्हेन यू लुक एट योर वीडियो ऑन म्यूट, आपको समझ में आएगा कि आपके एक्सप्रेशंस को डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट। जब आप ये तीनों एक्टिविटी कर लोगे, then you try recording the same video 4th time, and you will see that you have moved from level 1 to level 2 automatically. So I think communication skill खुद के लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. If you have to outsmart 10 people, you can. If you have to outsmart 20, you can. Jitan also mentioned about problem solving, thinking out of the box, कि क्या मैं शॉर्टकट ले सकता हूँ या इधर से जा सकता हूँ. बहुत कॉर्पोरेट्स में ना बड़ी मजा आती है. I'll just give one, if time permits, I'll just give one example. हमने एक एडवर्टीजमेंट क्लोज की कि ठीक है ऐसा ऐसा एक स्टोरी बोर्ड है, एक्टर को I cannot name the actor, but I can give you certain guesses. एक एक्टर है जिनके फादर हमेशा पेड़ पौधे देते रहते हैं लोगों को, ठीक है. ये वाले नहीं. ये वाले So नहीं. he was a upcoming fresh actor, so obviously we onboarded him. ठीक है, हमने उनके साथ उनकी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, निगोशिएट किया कि आपको हमारे लिए एक एडवर्टीजमेंट करनी है, ब्ला 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 एंड ऑल दैट. एंड फिर मैं मेरी मार्केटिंग टीम के साथ बैठा, मैंने कहा चलो एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं. फिर दे गॉट अ स्टोरी कि हम ऐसा स्क्रीन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फाइन. अब एक स्क्रिप्ट क्या थी कि एक बहुत बिजी रूट है एंड वहाँ पे द एक्टर इज स्केटिंग, और वो बिजी रूट में से स्केटिंग करते हुए जा रहा है और फिर वो एकदम रुकता है और फिर बोलता है बहुत पसीना आ गया, एंड देन वो फेस वॉश इस्तेमाल करता है. आई नो बाय दिस टाइम यू मस्ट हैव गेस्ड, ठीक है. नाउ एवरीथिंग सेट डन, बहुत हफ्ता लग गया, महीना लग गया इसके पीछे, और मैं घर जाके एक दिन सो रहा हूँ आराम से. मॉर्निंग 4:30 मुझे कॉल आता है बिजनेस वालों का. अब कॉर्पोरेट्स में कभी कभी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं बिकॉज लुक्रेटिव है, तो मतलब कुछ काम भी तो करना ही पड़ता है. तो 4:30 इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन उठाया और मेरा ब्रांड मैनेजर वहाँ से बोलता है अतुल एक प्रॉब्लम है. मतलब क्या यार, वो ना उसको स्केटिंग करते हुए आना है ट्रैफिक के बीच में. अब पुलिस बोल रहा है कि हेलमेट पहन के करना पड़ेगा, रोड है. नो वी हैव पेड लैक्स एंड लैक्स टू द एक्टर, राइट. अब अगर हेलमेट पहन लिया तो मैं किसको दिखाऊंगा, फिर तो एक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करें. अब हमने बोला यार थोड़ा सा बात करके देखो, इंडिया है, पुलिस वालों से बात करके देखो कि कैन दे गिव सम वेवर, वॉट एवर इज पॉसिबल इन लीगल डोमेन, कैन दे गिव सम वेवर. बट नहीं, बिकॉज द न्यू एक्टर, बच्चों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है. ऑब्वियसली वी आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, हम जो दिखाते हैं इट इम्पैक्ट सोसाइटी. हेलमेट नहीं दिखाएंगे तो गलत लगेगा. सो फाइनली देन वी सेड इमीडिएटली, एंड दिस इज बिकॉज सनराइज होने के पहले वो शूट कंप्लीट करना है. अगर वो नहीं होगा, धूप निकल गई तो एक्टर आएगा नहीं धूप में, उस दिन के पूरे पैसे गए. एंड व्हेन आई से पैसे, इट्स लाइक गुड 60-70 lakhs, lakhs नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट एक्टर, आपको बाकी सब भी तो शूटिंग और वो सब अरेंज करना है. विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने कहा यार एक वो एक और हेलमेट आता ना आधा वाला, जो हम सेफ्टी में पहनते हैं कंस्ट्रक्शन वाले में, वो ले लो, वो भी अच्छे क्वालिटी का ही है, हेलमेट भी है, काम भी हो जाएगा. एंड दैट वर्कड. सो आई एम सेइंग समवेयर your experience, your problem solving skill, because the brand manager was at that point of time, morning 4:30 AM, he was like अब मैं क्या करूँ, crazy, परमिशन नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा, अगर आधे घंटे में सूरज निकला तो गया. So I think these are certain set of challenges which always come, and therefore you should be ready. And as rightly said by my colleague panelist, your adaptability, flexibility, problem solving, communication skill set development, soft skill development, these are many areas. Stress management, ये सिर्फ फंडे नहीं है, ये एक्चुअली इनकलकेट करना पड़ता है इन सब चीज़ों को. और आज की डेट में हमारे पास, मतलब विनय से हमारे पास और मैं इंक्लूडेड, हमारे पास फॉर्चुनेटली मटेरियल की कमी नहीं है. इतने टाइप के पॉडकास्ट अवेलेबल है, इतने टाइप के यूट्यूबर अवेलेबल है. जाइए, सुनिए, आधा घंटा फॉर योर ओन स्किल सेट यू हैव टू गिव एवरी डे. And I think that will help you to develop those attributes which the companies look into fresh person. Thank you, Atul.
जो हमें बुक में नॉलेज मिलता है ना, वो तो हम कैसे भी पढ़ के कर लगते हैं, बट ये जो इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और जो हैक्स हैं, दीज आर एक्चुअली प्रेशियस एंड दैट इज़ वाई दिस थिंग इज़। सो अगर हम सम अप करें तो हमें एडिक्वेट क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट एटीट्यूड चाहिए एंड पोटेंशियल गुड कम्युनिकेशन स्किल, एंड मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ गोइंग टू मेक यू विन। Moving on to the next question, Atul, would you like to answer as to what are the key challenges and that the fresh graduate face while transitioning into the corporate jobs? What are the measures that they need to adopt to overcome these challenges? This question is close to my heart. I shifted to Bombay back in 2010, and everything was going good here. I was having my own practice, my office, working with Nico as a consultant, also was a faculty here. But somehow Unilever kicked in, and I was amused by Unilever. Their mantra was that every third house Unilever products, and why? Dove, Lifebuoy, Rin, जो भी बोलो, सब है उनके products. And when I joined, and उसके पहले आप लोगों को वो गेम पता होगा ना, व्यापार, right? Business. Business. Monopoly. मुझे मुंबई सिर्फ उसमें ही पता था. मैं उसी में उसके टिकट खरीदता था. बैंड्रा. मैंने I never been to Mumbai. I mean, I have traveled places, but somehow for some good reason I never landed up. It was for the job when I first shifted, and that gave me a culture shock. I'll tell you why. Smaller things, बहुत small, छोटी छोटी चीज़ें. वड़ा पाव आपने सबने सुना है, ठीक है? अब तो काफ़ी फेमस हो गया. वड़ा पाव गर्ल है, बिग बॉस है, सब चीज़ें. लेकिन आप में से जितने नागपुर के हैं उनको पता होगा कि यहाँ पाव उतना नहीं चलता है, राइट? आप तर्री चाहिए और वड़ा चाहिए, समोसा चाहिए, भजिया चाहिए. And I moved- पोहा. पोहा तो इज DNA. सो आई मूव टू बॉम्बे, ठीक है. बैग रखा मैंने, सामान रखा. एक मेरे को होटल में रूम में रखा गया. 15-20 दिन मिलते हैं आपको घर ढूंढने के लिए, तब तक आपका कंपनी होटल में स्टे कराती. मैं नीचे उतरा, मैंने देखा वड़ा पाव. मैंने सुना तो था, ट्राई करते हैं. एंड देन आई वॉज थिंकिंग, ये पाव क्यों खाते हैं? चलो फिर भी चलो, वड़ा पाव एक कंसेप्ट है, मैंने लिया. एंड देन समबडी केम टू माई नेक्स्ट टू मी एंड सेड एक भजी पाव. मेरा हो गया दिमाग खराब. मैं बोला यार भजिया तो उसके ऊपर ऑलरेडी कोटिंग है, फिर पाव क्यों चाहिए? बट दैट्स अ कल्चर यू नीड टू एम्बाइब, राइट? आफ्टर 10 years अब मैं खा लेता हूँ भजी पाव, ठीक है. सिमिलरली व्हेन यू जॉइन अ कॉर्पोरेट, there will be always new challenges. There will be the challenges pertaining to managing expectations. Emails will come to you. Hi Atul, I need this draft validated. First time email, I need this draft validated, but I wanted it like yesterday. Means that he was expecting me to get into his dreams and validate draft yesterday, which means there is an urgency behind the draft. So there is a business partner. You cannot tell him no. Reason being, I'll tell you. Because आप भी एक कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हो, आप वो भी एक कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा है. लेकिन अगर आपने सोचा कि इसने मुझे आज भेजा, मैं इसको कल जवाब दूंगा, देन यू आर डूइंग दैट 9 to 5 जॉब. देन उसने इट्स नॉट ल्यूक्रेटिव, इट्स नॉट फन. फन उसमें है यार कल दे सकता हूँ, फिर बोलेगा नहीं नहीं कोशिश करना थोड़ा आज, आई एम सॉरी मैं अगले वक्त को टाइम दूंगा, इस टाइम कर दे. देन यू टेक दैट किक, सेट, complete it. Then it रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, because you are managing the expectation. So once you manage that expectation, your other business partner, your clients will be more than happy and they will start respecting you more. So if you want time next time, they will give you. So managing expectation is one of the important aspect. And for managing expectation, time management is very key. एक काम 10 मिनट में भी हो सकता है, एक काम 25 मिनट में भी हो सकता है, और 4 घंटे भी लग सकते हैं. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो 25 मिनट या 15 मिनट वाला काम हम चैट जीपीटी से करें, ठीक है. व्हेन आई एम सेइंग वर्क, इट इज़ टू बी हार्ड वर्क, बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क ओवर अ पीरियड, व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस, दैट हार्ड वर्क डेवलप्स इनटू स्मार्ट वर्क. एंड एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, you need to do only smart work, but hard work is essential. Jitendra, would you like to add? हेलो. सो हम यहाँ पे सब आए हैं, आप लोग 2-3 दिन का ये सेमिनार अटेंड कर रहे हो. इसका एक पर्पज़ है जिसको
कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलते बिगर पिक्चर. सो वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग एनी कॉर्पोरेट यू शुड लुक इन टू दैट बिगर पिक्चर. वो कॉर्पोरेशन किस लिए आई है, वाई इट इज केम इन टू एग्जिस्टेंस, वो बिगर पिक्चर के साथ अलाइन होना. ये नहीं है कि मैं एज अ अकाउंटेंट ज्वाइन हुआ हूँ तो मैं मेरा अकाउंटेंसी का काम करके मेरा डेटा करके मेरा टारगेट करके मैं जाऊँगा, नहीं. फिर देन यू विल रिमेन एन एम्प्लॉय, यू विल सर्व एज अ एम्प्लॉय, यू विल बिकम अ गुड एम्प्लॉय, बट आपको एक बिगर पिक्चर देखना है. दूसरा, इनसिक्योरिटी अपने मन से निकाल देनी है कोई भी कॉरपोरेट में. ये याद रखो कि जो आपका काम है, मैं एक यहाँ पे एक बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि सर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हम बोलते हैं ना, ये एक साइड ऑफ कॉइन है. आप ये साइड से देखोगे ना, आज मैं एक एक्स नंबर ऑफ हायरिंग का बजट है मेरा, या टारगेट मैं बोलूँगा उसको, 1 अप्रैल को था. आज मैं x-20 पे हूँ, तो मैं 20% शॉर्ट हूँ हायरिंग के. क्यों शॉर्ट हूँ? क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड स्किल सेट वाले बंदे नहीं मिल रहे. But that to being in metro. मेट्रो में नहीं मिल रहे. और ये मेरी स्टोरी नहीं है, अतुल की स्टोरी नहीं है, ये एंटायर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की स्टोरी है कि उनको काबिल या वो पर्टिकुलर स्किल सेट वाले बंदे नहीं मिल रहे. बट वो क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू इन स्पाइट ऑफ गुड डिग्रीज. तो इनसिक्योरिटी जो दिमाग में होती है कि ये सामने वाला क्या करेगा. सपोज आप लॉ का स्टूडेंट्स अतुल के सामने इंटरव्यू के लिए दिया है ना, तो अतुल ने 2002 में लॉ की किताब बंद कर दी है. अतुल को कुछ नहीं पता है, वो आपको पता है. आपको पता है कि आज वो लेटेस्ट केस लॉ क्या है, बट आप जाते हो कि नहीं मैं अतुल के सामने जा रहा हूँ या मैं किसी और के सामने जा रहा हूँ, तो मेरा इंटरव्यू में क्या होगा. तो आपको इनसिक्योरिटी दिमाग से निकालनी है और आपको बिगर पिक्चर देखना है. आपको वहाँ के कल्चर को एडॉप्ट होना है. ये 3 बेसिक चीज़ें आप कर लोगे तो बाकी आपको पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आजकल की दुनिया में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, डीप सीक, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, इतनी सारी चीज़ें आ रही है. इन सब से हमारा काम तो डेफिनेटली अच्छा हो ही रहा है. दिन ब दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, नए तरीके से काम शुरू होता है. इस सब में हमारे बच्चे हो गए या स्टूडेंट्स हो गए या कैंडिडेट्स हो गए या जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी, वो कैसे अपने आप को अपडेट रखे ताकि वो कभी पीछे ना छूटे. सो जस्ट इन ट्यून विद द ऑनगोइंग वर्ल्ड. तो ये जो नए नए AI और मशीन लर्निंग मॉडल आए ना, इसके हम थोड़ा आज से 15-20 साल या 20 साल या जब मैं कॉलेज में था तब जाते. हम सुबह उठते थे तो अजंता का अलार्म बजता था. आज अजंता का अलार्म नहीं है. आज मेरा मोबाइल, तो जब मोबाइल इंडस्ट्री में आया होगा, नोकिया आया होगा, एरिक्सन आया होगा, तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि वो अजंता से कॉम्पीट कर रहा है. ठीक है. ओला उबर आई थी तो मेरे को नहीं लगा, मेरू एक कैब ड्राइवर मतलब कैब कंपनी थी, मेरे को नहीं लगा था कि ये ओला उबर मुझसे कॉम्पीट करेगी. क्या ऐप पे कौन कैब बुक करता है, मुझे तो मेरा टैक्सी वाला चाहिए. सिमिलरली ये AI ML, मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको जस्ट अवेयर करना चाहता हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि ये आपके एक हद से कॉम्पिटिटर है. वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स ऑटोमेशन. इन अमेरिका देर इज अ पर्टिकुलर पार्ट वेर इन ड्राइवरलेस टैक्सी ओला उबर चलती है. तो AI ने वहाँ पे जाके कंपटीशन किससे किया? टेस्ला में जाके कंपटीशन उसने वहाँ के ड्राइवर से किया है. तो ये मशीन लर्निंग और ये जो AI है ये आपसे कंपटीशन कर रहे हैं. ब्रिक एंड मोटर करके एक फ्रेज है, मतलब यहाँ से ये बॉटल यहाँ पे देनी है, वहाँ पे देनी है, तो इसके लिए पहले 4 आदमी लगते थे. अभी ये ऑटोमेट हो रहा है. तो ये ऑटोमेशन होगा तो ये कुछ जॉब इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा. बट ये जो ऑटोमेशन हो रहा है, ये ऑटोमेशन किस बेसिस पे हो रहा है? एक डेटा पे हो रहा है. कंटिन्यूसली ये AI ना एक डेटा कंज्यूम कर रहे हैं. आज भी हम ये 200-250 लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, तो वो गूगल या जो भी आपके इसमें ऐप है वो एनालाइज कर रहे हैं कि आप लोग क्यों आए. आप टैक्सी से आए, आपने बाहर जीपे से किसको पेमेंट किया, आपने क्या खाया, आप क्या बुक कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो. आपके व्हाट्सअप पे भी या आपके इंस्टा पे भी नोटिफिकेशन आएगा कि यार जितेंद्र आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना चाहिए. तो कंटिन्यूस डेटा एनालिसिस ये की है. आप अगर ये डेटा के ऊपर कोई कोर्सेस या डेटा एनालिसिस अगर खुद के इसमें इनकलकेट कर लोगे
तो ये एआई और इसको आप आपका फ्रेंड बना सकते हो और आप इसके बेसिस पे आगे एक्सेल कर सकते हो. अदरवाइज ये आपका एक कॉम्पिटिटर बन सकता है मेरी ओपिनियन में. डोंट यू एग्री अतुल? I'll rather ask this question to audience. How many of you think कि AI और ये जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, राइट, इससे ह्यूमन रिसोर्स को खतरा है, राइट? डू यू थिंक कि जो मैन पावर है आज की डेट में, नो, तो can क्या have poll. या वी कैन हैव अ पोल. आपको लगता है कि ये चीज़ों की वजह से जॉब्स पे यू इम्पैक्ट कैन आएगा? रेज योर हैंड्स. जिसको लगता है कि इससे बहुत जॉब्स पे इम्पैक्ट आएगा और जॉब्स जाने वाली है. जॉब जाने वाले ऐसे लगने वाले हाथ ऊपर करेंगे. काफ़ी काफ़ी सारे आते हैं. ओके, बहुत थैंक यू. आप लोगों की तो गई. आप लोग आप लोगों की गई. जस्ट किडिंग. एआई, कोई बता सकता है एआई कब का कंसेप्ट है? अभी अभी रिसेंटली? यस सर. फ्यू डेकेड्स ओल्ड. एग्जाम्पल, हर एरोप्लेन ऑटो पायलट मोड पे भी उड़ सकता है. दैट्स एन एआई, राइट? सो टेक्नोलॉजी ऑटो पायलट के वॉज एग्जिस्टिंग 50-20 years बैक. इट्स नॉट न्यू. The formulation or the concept or the package in which it is coming is changed. कंप्यूटर्स आए, हमको लगा जॉब जाएगा, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि उनको लाने वाला कौन है, ह्यूमंस, राइट? हमने उनको लाया और हमने उनको फिर छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया और करते जा रहे हैं. एआई आया है, जनरेटिव एआई आया है. I'm sure you must have heard about generative AI, right? So we have deep learning, we have machine learning, we have generative AI. These are all technologies for humans and these technologies cannot take away your job. ये किसका job लेके जाएंगे? Those who are dependent on them. What you need to do is, you need to upskill yourself so that you start playing with them. And that is what I think, rightly so, Jitendra was also pushing. That focus on data literacy. Data literacy, today's date is very important. Data analyst की भी एक job है. मैं interdisciplinary students को बताना चाहूँगा, आज की date में, like in his company at least he has some head counts. मेरे company में फिलहाल head count पे restrictions हैं कि ठीक है, we will, this साल का quota हो गया, next साल देखेंगे. But the only opportunities available is data scientist. The reason being, every company is data driven, and to grow, they need to chop the data. So I think data is very key. Start upskilling yourself from that perspective. AI, generative AI is important. Learn those, what does it mean? But again, they themselves are threat. DeepSeek आया, right? थोड़ा बहुत किसी ना किसी को पता होगा कि जितना चैट जीपीटी पे खर्चा हुआ उसका 10% भी DeepSeek को नहीं लगा है, right? And that is what has created havoc, China and US. So technologies will keep on coming. We have to adapt those technologies because we have to survive with them. But then there are no threatening technologies. We need to adapt and we need to take control of those technologies. So gain hands-on experience of those technologies for ethical purposes. Again, technology is a double-edged weapon. ठीक है, हम क्या नहीं करना चाहिए वो हम पहले सीखते हैं. ठीक ले, आपने सीख लिया, ओके, अब उसका इस्तेमाल मत करो, अब उसका इथिकली इस्तेमाल करो. So gain hands-on experience for ethical use of data and keep yourself updated. थैंक यू अतुल. क्या यहाँ पे किसी को पर्सनल ब्रांड पता है? कोई बात नहीं. दिस इज व्हाई वी हैव कॉल्ड दीज पीपल. Jitendra, can you elaborate something on personal brand or branding? Is it equally important in today's job market? यस. सो कॉरपोरेट में नॉर्मल जो सेल्स होता है ना, क्योंकि कॉरपोरेट्स कुछ ना कुछ चीज़ें या प्रोडक्ट बेचते ही है, उसके अलावा दो चीज़ें बेची जाती है. और ये एकदम मैं रॉ बोल रहा हूँ, इसको आप एकेडमिकली मत लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहा हूँ. दो चीज़ें कॉरपोरेट में बेची जाती है और खरीदी जाती है. एक, सपने बेचना. जब जूनियर आता है
आप उसके लिए वो शाहरुख खान की एक मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट वो एक इंजीनियर रहता है, कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसको उसकी बॉस जो हीरोइन है अमृता, वो उसको सपने बेचती है। तो वैसे कॉरपोरेट्स में आपको सपने बेचे जाएंगे, बट वो सपने खरे आपको ही करने पड़ते हैं। दूसरा, आपको खुद को बेचना है, तो खुद का एक ब्रांड क्रिएट करना है। तो जैसे अतुल ने एग्जांपल दिया कि 430 को इतना क्रूशियल सिचुएशन था, डिसीजन मेकिंग, हेलमेट पहनना नहीं पहनना, कंपनी के ऊपर फाइन लेना, ये अतुल के ऊपर के सुपीरियर्स भी कर सकते थे, बट उन्होंने कॉल अतुल को क्यों किया, या पर्टिकुलरली अतुल को ही क्यों किया, कि उनको पता था कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, बिकॉज प्रॉब्ली उनके दिमाग में इसकी ब्रांड की इमेज है। तो आपको आपका खुद का एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, और ब्रांड बनाने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ पे शाहरुख खान या ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं रिपीट करता हूँ, जो सिंपल चीज़ है आपकी पंक्चुअलिटी, नहीं ये बंदा ना सवेरे 9 बजे मुझे ऑफिस में मिलेगा ही, एक इमेज तैयार होता है। दूसरा, इसके डेटा में गलती नहीं होती, एक हम कोई फाइल भेज रहे या कोई चीज़ कर रहे तो वो पंक्चुअलिटी डेटा करेक्ट होना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा, ये बंदा जो टास्क दिया है वो इसको करता है, अगर नहीं आया तो ही कम बैक्स टू मी। तो ये बेसिक चीज़ें आप करोगे ना तो आपका एक इमेज तैयार होगा। तो ब्रांड एक थोड़ा बड़ा वर्ड है, आपका एक इमेज तैयार होगा। जैसे सर के भी सिंसियर स्टूडेंट्स हो गए ना, आपने भी आज की जिम्मेदारी कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स को दी होगी, क्योंकि आपको पता है कि वो करेंगे, आपको वही करना है। लेकिन वो करके जो टिपिकल हमारा विदर्भ का मेंटेलिटी, काम करके फिर पीछे हट जाना नहीं। आज यहाँ पे 50 लोग आए आपको मिलने के लिए, जाओ उनको भिड़ो, बोलो सर मैं ऑर्गेनाइजर, मुझे सवेरे से कॉल आ रहे थे, मुझे वो वर्ड बहुत अच्छा लगा सर, मैं आपकी शैडो हूँ। तो कॉर्पोरेट में भी वो कंसेप्ट है शैडो एग्जीक्यूटिव। कोई सीनियर एमडी रहेगा ना, उसके 4 शैडो रहते, कि वो एमडी अगर कल प्रमोट हुआ या दूसरे कंपनी में गया तो वो उसकी जगह लेंगे। तो आपको भी कॉर्पोरेट में जाके वही करना है कि एक बंदे को पकड़ लेना, उसका शैडो बनना है। दैट इज व्हाट आई कॉल्ड इट एज अ ब्रांडिंग, प्रियंका। Very true. Atul, is there something, or should I move on to the next question? बेचना बहुत ज़रूरी है, हर कोई किसी न किसी को बेच रहा है। रॉकेट सिंह देखा है आपने, है ना? तो और आज के डेट में वो आसान है, हमारे वक्त उतना नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम नहीं बेच पाए या वॉट एवर, बट आई एम सेइंग आज के डेट में थोड़ा सा आसान है। यू हैव लिंक्डइन, यू हैव एक्स, यू हैव इंस्टा एंड एवरीथिंग, राइट? सो क्रिएट योर ओन ब्रांड। मुझे एक ही बात याद आती है ऑन द ब्रांडिंग पार्ट, आई विल टेल यू। एंड अगेन दिस इज समथिंग which is not by way of a shortcut. Branding can only build by hard work, and consistency and trust. Indra Nooyi, अगर आपने कभी नाम सुना होगा, and she is a very highly respected woman in corporate sector. She was one of the only lady at the highest level at one point of time. And एक इंटरव्यू था तो मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू सुना, and this is another hack. Guys, keep on listening good podcast, keep on listening good YouTube. किसी ने उनसे पूछा कि why Indra Nooyi? What is different in Indra Nooyi? She said, listen, there are 10 men sitting in the boardroom, but when I walk, I know that the subject which I know only I know and nobody else. So I think कुछ एक ऐसा करो, ये मेरा ब्रांड है, बाकी फिर देख लेंगे यार, विदर्भ वाले। Thank you. प्रियंका सॉरी, ब्रांडिंग और भाई लोग, ब्रांडिंग और बटरिंग दो कंप्लीटली अलग चीज़ें। हाँ. मैं मेरे सुपीरियर के सामने जाके आगे पीछे घूमूंगा, वो उसका कुछ पर्सनल काम करूंगा, तो देन यू आर फिनिश। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना और खुद का एक इमेज बनाना, खुद का एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करना। एग्जाम्पल, जो स्टेज पे फोटो लगाए गडकरी जी, मैं जब भी नागपुर के लिए आता हूँ तो बोलता, किसी को भी, भारत के या दुनिया के किसी भी बंदे को बोलता हूँ कि मैं नागपुर जा रहा हूँ दिवाली के लिए। हाँ, गडकरी जी का नागपुर जा रहे हो, यहाँ पे रोड्स और वो 3-3 माले का फ्लाईओवर है, वो ब्रांड है। यस प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Jitendra, let's last but not the least, I'm asking the last question. After this, you people can ask the questions. Let's talk about the elephant in the room, the corporate politics. Is it for real? And what are the misconceptions about working in a corporate? सबसे जो हम माइंडसेट की बात कर रहे थे, मीन्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे जाके गधा मजदूरी होती है, गाली गलौज होती है, वहाँ पे मेल्स होते हैं, बहुत मेल बहुत एक्सचेंज होते मेल्स हैं. होते हैं,
Meetings. सॉरी हाँ मीटिंग्स होती है मेल्स आते सॉरी यू आर रेफरिंग टू ईमेल्स यस so I went to the gender No, gender I was diversity also referring to emails sorry only. I didn't mean to offend anybody so मैं अगर उसको कंपेयर करूं तो प्रॉब्लम्स हर जगह है जो सर इंजीनियरिंग के मतलब डीन है तो जहाँ फ्रिक्शन है वहीं पे फोर्स है ना सर मुझे याद नहीं इतना लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे ये सब रेजिस्टेंस है वहीं पे आप आगे जाओगे और वहीं पे आप आपका ब्रांड क्रिएट कर पाओगे तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो है ना कि देर रात तक काम करना पड़ता है बहुत काम करना पड़ता है ये कुछ नहीं है आप ऑर्गेनाइज रहो आप आपका काम टाइम पे करो 9 से 6 काम करने वाले भी लोग हैं दूसरा ये मिसकंसेप्शन है कि प्रेशर है टारगेट दिया जाता है ये दिया जाता है कि उसका रिवॉर्ड भी है प्लस वो टारगेट एथिकली दिया जाता है कॉरपोरेट्स में आज पॉलिसीज वर्क कल्चर इतनी स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है तीसरा कॉरपोरेट्स में एक मिथ है कि एक्सप्लॉयटेशन है सैलरी कम मिलती है तो वी टच अपॉन दैट टॉपिक इन द बिगिनिंग तो मेरे हिसाब से तो यही मिसकंसेप्शन है और कुछ हो गए तो आई कैन आस्क ऑडियंस कि आपके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन है तो मैं वी कैन आंसर रतुल यू कैन ऐड Atul, can you add on to it? या आई मीन बिगेस्ट तो वही है एक वो एडवर्टाइज मुझे बड़ी हमेशा मुझे गुस्सा आता है उस एडवर्टाइज को देख के बट अच्छा एडवर्टाइज है मैं और मेरी जैसे किसी बंदे ने उसको अप्रूव भी किया होगा 3 लोग बैठे होते हैं और एक वो ट्रायंगल का एक चिप्स है राइट मुझे नाम नहीं आता बिंगो 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 Mad angles. मैड एंगल्स वो बोलते हैं हाँ जस्ट टर्न दिस राइट फिर वो देखते हैं थोड़ी देर फिर बोलते हैं इसको थोड़ा फिर से टर्न करो अल्टीमेटली दे आर जस्ट लुकिंग एट द सेम पिक्चर राइट बट इट्स नॉट हाउ एक्चुअली कॉर्पोरेट ऑपरेट्स ऐसा नहीं होता मीटिंग्स होती हैं काफ़ी पावरफुल मीटिंग्स होती हैं एंड आई मीन आई बीन ब्लेस्ड एटलीस्ट इन माई ओन वे बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट्स आई मेट सेलिब्रिटीज met intellectual peoples, traveled across the world. ठीक है कुछ myths हैं कुछ frictions होते हैं as rightly जीतू said कभी कभी ना out of the box जाके काम करना पड़ता है कभी लिटरली ऐसा हो जाता है कि कभी कभी 23 घंटे हम लोग को सोने नहीं मिलता है बट देन येस देर आर पर्क्स टू इट रात को फ़ोन आएगा 11 बजे कि अभी के अभी निकलो उस फैक्ट्री में झगड़ा हो गया यूनियन ने काम बंद कर दिया राइट होता है ऐसा बहुत बार या आपने किसी एक सेलिब्रिटी को एंडोर्स कर लिया उसके फादर का फ़ोन आएगा कि आपने उसके साथ में क्यों एंडोर्समेंट किया तो वो भी आपको रिजॉल्व करना पड़ता है देर आर फ्रिक्शंस देर विल बी ऑलवेज फ्रिक्शंस बट इट इज़ दीज फ्रिक्शंस हु विल हेल्प यू टू ग्रो ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि बॉस गाली गलौज करते हैं होता भी होगा आई एम नॉट सेइंग नो ठीक है देर आर कॉर्पोरेट्स एंड एवरी कॉर्पोरेट बट देन द बेस्ट पार्ट ऑफ इफ यू थिंक you are being untreated, you are not being treated well, there is no respect, nothing stops you from moving to a different role. Self-respect is important and that is what is, again, that's a beauty of corporate. and even to complain there Yeah. are structure he or she can You can always, and there are committees. Posh, you know, that specific statute has come and today every company is scared of that. CB ka LODR compliances hai. Any fine, any complaint has to be reported within less than 24 hours. So there are people sitting, there are investors sitting, there are boards sitting. So it's not very easy for, to showcase or the way in which unfortunately corporates are being showcased. ऐसा नहीं है. You get free breakfast, you get free lunches, you get to work with best of the people, best of the teams, medias and whatnots, supply chain, manufacturing, and there is lot of areas to learn from. Now, if today somebody asks me कि okay, क्या अच्छा था, practice या job, हो सकता है ये सवाल, और मैं खुद को भी पूछता हूँ क्योंकि मैंने practice भी की है, and then I moved to corporate. Nothing is bad और nothing is good. हर एक के अपने pro and cons हैं. आज मुझे भी लगता है practice उतनी ही अच्छी है और मुझे लगता है कि शायद कॉर्पोरेट भी उतना ही अच्छा है बट वेयर आई एम हैप्पी बिकॉज एटलीस्ट मुझे और 4 चीज़ें नहीं पता लगी तो शायद मेरे लिए वो अच्छा था सो डेफिनेटली आई थिंक देयर आर मिथ्स बट इट्स नॉट फैक्ट्स एंड एंड ऑफ द डे मंथली पेचेक इज इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट्स में अमूमन ऐसा होता है कि आपके जो एनुअल टारगेट्स है मे बी जनवरी अप्रैल में आपको एक अच्छे डेस्टिनेशन पे जाके अनाउंस होते हैं
आप आपका टारगेट अचीव करते हो तो आपको पेपर्स के साथ आपको फॉरेन ट्रैवल्स मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से अच्छी है ये यंग जनरेशन के लिए, हमको उसका इतना अट्रैक्शन नहीं था, बट ये चीज़ें हैं। कॉर्पोरेट्स के बारे में अगेन प्रियंका प्रॉब्ली विल मूव टू ऑडियंस क्वेश्चन। आपको और भी कुछ मिथ्स है, डर है, यू कैन आस्क। I'll just add what you rightly said, a very important point. You know, back in those days, बहुत कम फ्लाइट्स थे नागपुर से, and I live in Ujjwal Nagar. I stay in Ujjwal Nagar, which is very close to airport, right? And those who know, I mean, I don't think you guys know, but sir would remember there is a process in which संक्रांति का मंजा प्रिपेयर किया जाता है? रात गुजारनी पड़ती है उसके लिए रास्ते पे सुखाने के लिए वो मंजे को। वो हम करने के लिए एयरपोर्ट के रास्ते पे चोरी छुपे जाते थे, बिकॉज पूरा वो रोड मिल जाता था वो कांच वाच बना के। तो हम बैठ मैं खुद की कहानी बता रहा हूँ। तो आई यूज्ड टू सी दोज एरोप्लेन्स, क्योंकि वहाँ पे ना तब 3 ग्लाइडर के होल्डिंग वेयर हाउसेस थे, ग्लाइडर टीचिंग स्कूल था। एंड यार कब तो मौका मिलेगा इसमें बैठने का। ऑब्वियसली फाइनेंशियली उतना नहीं था कि बैठ पाएँ, गॉट इन टू जॉब, वर्किंग हार्ड, वॉट एवर। And then suddenly, and this is something I always cherish and tell my children also, there was 1 month, wherein in that 1 month alone, I did 13 flights. ठीक है, कुछ लेना देना नहीं, उसके पहले मुझे एयरपोर्ट नहीं पता था, सिर्फ मैं देखता था। बट एक मैटर हो गया, उस मैटर के लिए मुझे जाना पड़ा। देन देयर वाज इंजेक्शन, तो वो चेन्नई दिल्ली, एंड 1 महीने में 13 फ्लाइट्स। उसके बाद ऐसा लगने लग गया कि मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर। सो कॉर्पोरेट के पर्क्स भी बहुत है, एंड इट गिव्स यू अ बैलेंस्ड लाइफ। यस, बिगेस्ट मिथ, एंड आई शुड जस्ट पुट दिस वर्ड टू यू, बिगेस्ट मिथ इन कॉर्पोरेट इज वर्क लाइफ बैलेंस, कि वर्क लाइफ बैलेंस इज क्रूड। घर बार सब बेच के तुमको नौकरी करनी पड़ती है, बट कहाँ नहीं करनी पड़ती। अब खुद का दुकान डालो, आपको करना पड़ेगा। आप अपना खुद का स्कूल डालो, करना पड़ेगा। आप कुछ भी करो, कोई भी ऑक्यूपेशन ले लो, आज का एनवायरनमेंट ऐसा है जहां आपको अपने वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड जाके काम करना पड़ेगा। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज अपॉन यू, हाउ यू अचीव इट। आपने सोच लिया कि ठीक है, मैं अगर हफ्ते में 4 दिन 5 बजे घर नहीं पहुंच सकता, मैं 3 दिन कोशिश करूँगा। एटलीस्ट आई विल बी विथ माई फैमिली, आई विल बी एबल टू स्पेंड दैट टाइम वाइजली। इट गिव्स यू वर्क लाइफ बैलेंस। सो वर्क लाइफ बैलेंस is might be a very big myth, but then it's not a fact, it is a person dependent. So I think overall तैयारी करो, एडवांटेज विदर बहुत सारी चीज़ें लाएगा। हम भी आएंगे, जिस दिन मौका मिला हम भी वापस इधर ही आने वाले हैं, और हम भी आशा करेंगे कि आप लोग भी उस वक्त सब रेडी रहोगे, हम लोग सब विदर्भ को आगे लेके जाएंगे। किस्से बहुत है उनके पास सुनाने के लिए, बट हमें वक्त की कमी है। सो कडू सर, हम ऑडियंस में से पूछे कि शुड वी पुट अ फुल स्टॉप, लाइक यू सजेस्ट, बिकॉज हमको टाइम 4 बजे का दिया था। ओके, इज देयर आर देयर एनी क्वेश्चंस? यस प्लीज, डू यू वांट अ माइक? Hello sir, hello ma'am. Thank you for giving me an opportunity. My name is Komal Likhare and I am from Dr. Baba Saheb Ambedkar. कोमल, गो स्लो। हमारी फ्लाइट कल की है। Yeah. Yes sir. बी लाउडर, कॉन्फिडेंस। Yeah. Sir, as I'm a fresher, supposedly I want to join in corporate law. So what did you all skills you have applied in your all career journey, and कॉर्पोरेट लॉ में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए आपने क्या स्किल्स अप्लाई किए जिससे आप इतने सक्सेसफुल हो गए? सो एज अ वुमन। जीतू, वुड यू लाइक टू आंसर? सक्सेसफुल होने के लिए एडाप्टिव स्किल्स बहुत ज़रूरी है। जो हमने ये टॉपिक कवर किया है, मैं उसको रिएटरेट करता हूँ। सबसे पहला, शुरू से अच्छा हो आपने सवाल पूछा, वी विल रिवाइज व्हाट वी वुड हैव प्रॉब्ली डिस्कस टुडे। माइंडसेट होना चाहिए आपने कि आपको कॉर्पोरेट में कि ये 50-50 है कि मैं लॉ प्रैक्टिस भी करूँगी, मैं नेट सेट भी करूँगी, या फिर मैं कॉर्पोरेट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे वहाँ पे जाना है। तो फर्स्ट इज माइंडसेट, देन योर सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल, सेल माई स्किल, योर डेटा एनालिसिस स्किल, ये बेसिक आपके पास होना चाहिए। तीसरा, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द कल्चर
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आप वहाँ पे ये 3 चीज़ें करोगे ना, आपको होगा। ऐसा कोई आपको तेंदुलकर नहीं बनना है वहाँ पे जाके कि पहले मैच से सेंचुरी, ठीक है, नॉर्मल इससे आप जा सकते हो। कोमल, आई जस्ट गिव यू वन इनसाइट एंड ये ना हमको एक मिथ था कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो हम बहुत तैयारी करते हैं लॉ के बारे में। जैसे अज्यूमिंग कॉर्पोरेट लॉ है, राइट, तो मुझे शायद ये सवाल पूछेंगे, सेक्शन ये वाला क्या रहेगा, वो सेक्शन का जवाब क्या रहेगा, ये इंजेक्शन के लिए क्या, एंड trust me, when we take interviews, I mean, in his domain and I take interviews in my domain. The only thing what we see is कैंडिडेट में वो जज्बा है या नहीं है, और कल्चर फिट है कि नहीं है। जज्बा मतलब सर नहीं आता बट हम कर लेंगे, या मैं करने के लिए सर सीख लूँगा। और दूसरा, the way the candidate presents, because that represents the culture. So every organization has values, missions, culture. So whether the candidate is culture fit or this particular thing, so वो अगर चीज़ें हैं, then we take. एक HR का एक बहुत बेसिक रूल है, and please this is trust me, ये किसी भी कंपनी के लिए लागू। 70% learning is always on the job, 20% is what your superior teach you, and 10% is what HR will help you. So अगर आपको उस जॉब के बारे में नहीं भी पता तो भी प्रॉब्लम नहीं है। चांसेस आर यू माइट गेट सिलेक्टेड जस्ट बिकॉज हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, यू शो दैट यू हैव कैन डू एटीट्यूड एंड यू आर कल्चर फिट, देन तो जॉब पे सीख जाओगे। Basically, eagerness to learn. Any other question? Please raise your hand. I am not able to see. Hello. As we discuss about the organizations who are paying good amount, but this is not the part of the society and the market that I had seen. I had worked in sales and marketing, then mechanical domain, then I am a former student of Dr. Prashant Gadu sir at Nagpur Institute of Technology, Nagpur, and also work at American Home Mortgage Processes as an associate analyst. But what the market is paying, that is very less as compared to the living standards and basic fair wages. So what is your opinion about what corporate need to done? As we had seen 700 students who are on training at Infosys, that was fired by Infosys 2 days ago. So this is the harsh reality. So what is your opinion on this? So, what is your good name? Vivek Pawar. Okay. Vivek Vivek Pawar. Pawar. So I hope answer to this question, it will not put us in a spot of botheration. It's a very sensitive question, and I know we are on a recorded line. But as I was saying earlier, when you work for an organization, your salary is linked with the profit, your salary is linked with the performance of that organization. When there are certain events which happens, like COVID came 4-5 years back. Then in 2008 there was a Lehman Brothers, recession was there. Earlier in 70s there were some difficult situation worldwide. So companies are bound to do that. So I am not saying I am not justifying, I am not commenting on what you have said about particular company, but it is bound to happen. Now coming to your questions, companies are not paying good. So probably answer is yes or maybe no, because that company's process, that company's structure, and that company's overall mission, purpose is not able to generate that much of profit. So it is up to those employees, to think, to come. I will give you one example. I know a person personally who had joined a company which was making, let's say 200 crores of loss. But he took that bet and now he is heading that company. So it's 50% it's that employees contribution or overall employees contribution, and 50% it's that company's performance according to its policy as performance, which will give you good purse. Second option which is always available to you is to switch the job.
So if company is performing, let's say in Vidarbha sector, and it is dependent on certain customers in Vidarbha, or let's say in Maharashtra or central India, it is bound to have some, restriction in paying the employee. But if you start working for another company, probably you will get a good salary. That is the answer. And this question is very rude. Rude. I'll say, I'm not saying you. Big rude, because every person has to deal with this question. Forget about corporate. I mean, all those who are on the paychecks in this room itself, nobody is happy with those numbers. थोड़ा है, थोड़े और की ज़रूरत है ना, वो गाना इसीलिए बना है. और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कंटेंट, कि नहीं जितना है उतने में खुश रहो, नहीं. You have to have fire in the belly, because unless there is a fire in the belly, you will not move on. What is important? Couple of things. When you are doing some job, there are stages of life. Initially, you are learning. That's what I said. If you remember, in our previous discussions, I said hard work. जब आप hard work कर रहे हो, पैसा मत देखो. Because आप उस वक्त किसी और के काम को सीख रहे हो, right? I know money is important. Everybody knows it is important. But you are learning something. You are in learning phase. Then there is a phase when you grow up and you are able to use what you have learned and you bring value add to your next role, right? There you get compensated over and above what you are working, because you are able to value add. But since still you are into execution as well as learning mode. Difference is, first and foremost, understand when you join a corporate, you are going to be a head count. Harsh reality, but this is truth. You are only a head count related to productivity, rightly put. आप जहाँ पे productivity नहीं ला रहे हो, आप game से बाहर, आपकी जगह पे 10 लोग और खड़े हैं. And this is hard reality and one has to accept it. And that is why this session. वो harsh reality को मैं कैसे overcome करूँ? Whatever we discussed about developing soft skill, developing communication skill, developing your skill set to the level wherein there is a transition from head count to resource. So two words. One is head count, second is resource. जहाँ आप head count हो, आपका first phase है, आपका beginning phase है, आपका learning phase है. You keep on improving. Keep in your mind that you don't have to remain a head count. You might be a head count. Nothing bad in that. We were head count. In some of the eyes, we are still head count. But nothing bad in it. Your aim, your motive should be, I should become a resource. Now, how does the resource thing comes into picture? When you gain expertise over a topic. When you gain expertise over a subject. ठीक है? आप resource बन गए, आपको companies आके pick करेंगी because now you have that skill set. Is that sufficient enough? No. Once you are a resource, next level is KMP. How do you do your journey from resource to KMP? KMP means key managerial person, जिसके बिना वो नहीं चल सकता, या मतलब इसका प्रेजेंस जरूरी है ये चलाने के लिए, राइट? सो आप उस हिसाब से देख लो कि आप पटरी हो, चक्के हो, इंजन हो, right? There is a journey, and this journey happens. Now, in all the spheres of this journey, from headcount to resource to KMP to board, right? हमने topic लिखा हुआ है from campus to corporate. Life doesn't end at corporate. It is classes to boardroom. Ultimate aim should be that I should be on the board of directors of the company. I make the decisions about my company. In this gamut of scenario, perks are important. Commercial, monetary realization is important. But yes, you will always come across a scenario. And Mr. Pawar, with due respect, we might be at certain stages of our life, but there are people who at our age, our experience, are settled better, earning more than us. And there are equally some people at our level, maybe, at a, I'll not say lower level, but at a different pedigree, right? So there will be people at different level. Obviously, when you think that, okay, I want to become a resource, you develop those skills.
Once you acquire those skill, if your existing company, current company is not valuing that, springboard, the concept of moving to another company. But yes, when I'm telling you springboard, please friends, and I tell you from the heart of this, because we see resumes, and when we see resumes on hundreds and thousands. हर 2 साल में कंपनी मत चेंज करो, ठीक है, कि यहाँ मैं 10%, अगले साल 15%, उधर 25%, 30%, आपको वो 50% तक लेके जाएगा, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो अभी भी आपका हेड काउंट वाला है. So you have to develop from headcount to resource to KMP to boardroom. Automatically, your monetary value also will increase. And then, obviously, you need to negotiate well. You need to know that, okay, if it is not working out, or probably there is a industry in a particular society, in a particular area, which has many options available, then probably you'll have to relocate. Think out of the box. Fine. You will have to take those certain risks. We both took a risk, probably moved from different cities to different cities. It has helped. So it's all very subjective. There is no straitjacket formula, But yes, one has to continue upskilling themselves to cross this hierarchy. I think it will make some sense. So are there any more questions or we Yes, should ma'am. end? I would like to ask a question. Okay, you. Hello. So you know our names are displayed. So I am not, I am allowing you to ask question. But before I forget, I just want to add that you can always reach us on our LinkedIn handle. You can ask any questions or any help. We are ready. So that's what I wanted to make. Yes, you can ask your question. A very good afternoon to the panelists. I am Duha Basha from Dr. Babasaheb Ambedkar College of Law, Main Branch, Nagpur. So it has been an insightful listening to both of you. So I would like to ask this: how important is networking for a career in corporates? Very good questions. Please have a clap for her for this question. So you can sit down. Thank you, sir. In a corporate, and probably you reminded us an important topic which probably we skip or we were not able to tell. At a certain level, maybe after, let's say, at the age of 35, the next job change in your life will only come through networking. So because you will be at certain hierarchical level, you will be, let's say, regional manager, area manager, territory manager, and people from the other companies or people within your companies will only choose you basis your networking skill. So networking is very important. Networking can be within the peers, like if someone is working in the, let's say, pharmaceutical industry, then you can have your networking within various pharmaceutical person. If you are a law student, you can always have networking within various lawyers. Now we have WhatsApp group, you can always follow a senior lawyer, you can follow X, or that is we call Twitter, you can follow Live Law. So everything will come under your domain, and networking is of different style also. That networking with the law enforcement agency, networking with the industrialist, networking with the academician, networking with industrialist. So, and there are simplest ways available, like connecting with them through social media and following them. Networking need not necessarily mean that you go and talk and have chit chat with them on every occasion. No, you can just follow them and learn them, and then you can develop your network. We spoke about one concept called as branding, and a part of branding comes from networking. आप एक बहुत कहावत है मेरे ख्याल से हिंदी की, शायद मुझे वो कहावत कैसे है वो नहीं पता, बट बोलते हैं कि आप वो हो जो आप 4 लोगों के साथ रहते हो, आप वो 5वें हो जो आप the people you surrounded with. Yeah, you're known by the company you're in. Thank you, sir. And that's a very rightful thing. No, I'm not saying that, okay, you be judging, ये कंधा कैसे इसका रहूं कि नहीं रहूं. No, that's not the case, right? You'll have to have those flavors of life. But then, when you set some goals for yourself, try to figure out who are people in the same line of thought. Try to connect them. Try to understand them. Simple hack. Go to their LinkedIn, see what all they have studied. What is something which is not known to you? Google it out. Try to study it out. Connect to them. If you don't know, ask them, sir, I'm so and so. I just wanted to know, I see something on your profile. How can I go about it? Or is it worth? Can you guide me on this?
Simple networking also will take you to a longer length. And networking is key. Branding is key. That's gonna help you a long, long way. I think, Kadu sir, we'll summarize. Thank you, everyone. Thank you, respected dignitaries, for this lovely and informative session. And yes, this session was very helpful for us. Was this helpful for you all? Yes, the smile on their faces reveals that this was very helpful for them. To sum up the program, I would like to call Dr. Prashant Kadu, sir. Again, very good evening all. I say very good evening. सेशन एंड हो गया मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा कि आपके पास इतनी सारी एनर्जी मिली है, इसके कारण आपका जो कारपोरेट जाने का रास्ता है, फ्रॉम कैंपस टू कारपोरेट, ये अच्छी तरह से आपको पता हुआ होगा. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जितेंद्र जी एंड देन अतुल जी फॉर गिविंग द कंप्लीट इनसाइट. फ्रेंड्स, ये पूरे प्रोसेस में लास्ट वाला वर्ड जो था नेटवर्किंग, वो सभी जगह पे काम में आता है. मैंने कॉल किया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीजी लॉ पायल ठवरे मैडम को, डॉक्टर पायल ठवरे मैडम को. उनका नेटवर्किंग इनके साथ था, इसलिए वो आपके सामने. आप यहाँ पे आए, मेरा कुछ नेटवर्किंग थोड़ा बहुत अलग अलग कॉलेज के साथ था, इसलिए आए. जैसे इसमें से डॉक्टर परवेज अंजुमन कॉलेज से है, फिर हमारे पुनिया सर है जो एसोसिएट डीन है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के, और कुछ फैकल्टी मेंबर भी. डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन से कारपोरेट जाने का एक रास्ता आपको सही माने में मिला है, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ. इन सभी महानुभावों ने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ें, उनके 20-25 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने रखा. नाउ यू शुड बी 20 years ahead from them. This is my expectation from this, because if you want to make this advantage Vidarbha successful, make the Vidarbha region of this country well branded, because for human resource we are well branded. इन्होंने 2-3 बार बोला है कि अगर आप पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जाओगे, विदर्भ का बंदा है, बॉम्बे वाला बोलेगा बढ़िया काम करेगा. वी आर नोन फॉर हार्ड वर्किंग. ओनली थिंग, फ्यू फार्मूलाज लाइक 70-20-10, इस कुछ चीज़ें हमको हमारे में अपनाना पड़ेगा. फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी. मुझे अच्छा लगा जितेंद्र सर ने बताया कि आपने खुद के बारे में बड़ा पिक्चर देखना चाहिए. कलाम साहब बोलते स्मॉल एम इज़ अ क्राइम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दी लेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अलग बात थी, लेकिन हमारे दिल के, ही यूज्ड टू ऑलवेज से स्मॉल एम इज़ अ क्राइम. इट गोज विथ योर लाइन, थिंक ऑफ बिगर पिक्चर. जसं आहे तसं स्वतःला पहिले स्वीकारा आणि स्वतःला एकदम मोठं समजायचा प्रयत्न करा पहले, लेकिन खुद को समझना पड़ेगा. आज के सेशन के माध्यम से खुद को समझने का एक मौका मिला है. अच्छे टूल्स अतुल सर ने दिए, वो टूल्स को फॉलो करो. डियर फ्रेंड्स, वंस यू आइडेंटिफाई योर ओन आइडेंटिटी, I repeat, once you identify your own identity, that is your USP, unique selling point. If you get it, for getting your own USP, first of all, you have to love yourself. You have to respect yourself. ये अगर हो गया तो इनके कारपोरेट हाउस में जो बोला जाता है, you have to sell yourself. Once you get USP, तो you can sell you get your selling point. आज के सेशन से ये भी कुछ चीज़ें हमको मिली. ये सेशन मुझे मेरी फैकल्टी का जो है, फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, ऐसे पूरा प्रवास करते हुए जाते हुए दिखा, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी. और इस माध्यम से
आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव भी, लॉ के कुछ पर्सपेक्टिव भी, और जो कॉरपोरेट हाउसेज चाहते हैं, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क, ये पूरी की पूरी चीज़ें का एक प्रवास आपको यहाँ अच्छी तरह से मिला। हर वक्त कॉरपोरेट हाउस से बोलता है कि हमारे यूनिवर्सिटी या अलग अलग कॉलेज से जो बच्चे एजुकेट होते हैं, उनके पास उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल सेट नहीं है। वो कौन से स्किल सेट होना चाहिए उसके बारे में अंदाज़ा इन सभी लोगों के संभाषण के माध्यम से आया होगा। यू मस्ट हैव गॉट द वेरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री फॉर व्हिच अ इंडस्ट्री लुकिंग फॉर। ये सब चीज़ें आज के माध्यम से आपको मिली है। मुझे लगता है कि इसको खुद में एम्बाइब करने के लिए मैं खुद का एक 3C फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। फर्स्ट C इज़ कंसर्न, सेकंड C इज़ commitment, and third C is consistency. If you are concerned, commitment and consistency, then definitely you can achieve all your goals. आज की सेशन से जो गोल ऑनरेबल नितिन जी गडकरी सर ने सेट किया है, to raise the bar of this Vidarbha, will be definitely going to be successful. I am very much thankful to both of the corporate person, Jitendra ji and Atul ji. Bigger thanks goes to Priyanka madam. She is, because to moderate, to become the catalyst of any process, we need someone. Like for Vidarbha, Devendra ji and Nitin ji is a catalyst. लेकिन वो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन हमारे इस हॉल में एक कैटलिस्ट की ज़रूरत थी। आपने वो कैटलिस्ट का एक अच्छा काम यहाँ किया। दोस्तों, मैडम जैसे ही कैटलिस्ट का काम आप खुद की ज़िंदगी में पहले करो, फिर आपके फैमिली में करो। ये सब अगर प्रोसेस के लिए अगर आप कैटलिस्ट बन जाते हो, तो अपने आप अपने आसपास की सोसाइटी, अपने आप अपना देश बड़ा होगा, विदर्भ बड़ा होगा। इस अपेक्षा के साथ आप सब लोग आए। मेरी फैकल्टी जो राष्ट्रचंद्र टुकड़ी जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, on behalf of Honorable Vice Chancellor of the University, on behalf of the Pro Vice Chancellor of the University, and the main driving force of aid, Nitinji Gadkari, I convey a sincere thanks on behalf of them for being part of this activity, with a hope that whatever you have taken, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्ही फक्त ऐकायच्या, ग्रहण करण्याच्या मनस्थितीमध्ये राहा. आज तुम्ही जे काही ग्रहण केलेलं असेल, whatever you have accepted today, try to adopt, try to pass on to your fellow friends, try to pass on to the society in general in Nagpur, कि एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से नागपुर या विदर्भ का चेहरे में बदलाव आने वाला है. With this hope, I thank you again and stop here. Let us make the journey of Vidarbha, develop Vidarbha at a higher level. Like Dr. Kalam says, small aim is a crime. Thank you. As we come to the conclusion of the insightful panel discussion, I, Shruti Hulke, would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to everyone who made this event possible. First and foremost, I would like to thank our esteemed panelists for their invaluable contributions, Shri Atul Khadse sir and Shri Jitendra Zadokar sir. Thank you, sir. Your insights have not